السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور شفاعت. جی آ جائے جی بالکل آ جائے جی. اور یہ ہے جی شفاعت کریم. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ سب سیٹ ہیں، مزے میں، خیر باش اور امن سیٹ. آج جناب آپ کے سامنے جو شو لے کے آئے ہیں اس میں کیوں پہلے مجھے بتائیں، ایک تو ٹائی سیدھی کرے اپنے. کیا ہوا؟ کیوں لیٹ ہو گئے یہ بتائیں ذرا. لیٹ کہاں ہو گئے؟ یہ یہاں میں کھڑا ہوں، پتہ نہیں انہوں نے یہاں کھڑے ہوئے، یہاں کھڑے ہوئے، یہ سامنے آپ کے. استغفر اللہ، جھوٹ نہ بولے. مائک لگ رہا ہوتا ہے بندے کو، ایسے ہی ہوتا ہے، مائک لگ رہا ہے. کل سے آپ پورے 9 بجے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہوں گے. نہیں ہوں گے. نو، میں یہاں مائک لگاؤں گا، مائک لگے گا تو آؤں گا، مائک لگے تو بغیر پہلے لگوا لیا کریں مائک. وہی ٹائم پہ چلے جی. خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. آج کے شو میں واپس بہت کچھ خاص ہے. کل بڑی کامیڈی چلی جناب. کل ٹویٹر پہ جو لوگ کنگنا رنوت کو فالو کر رہے ہیں ان کے پاس بڑی مطلب انٹرٹینمنٹ والی چیزیں تھی. فل ہم نے پاپ کارن پکڑے ہوئے تھے کیونکہ شفاعت وہ خاتون مجھے لگتا ہے بیچاری پاگل ہو گئی ہے. ایک طرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت میں کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ریحانہ جناب تمام تو لوگ جانتے ہیں، بہت بڑی سپر سٹار ہے، ہالی ووڈ کی بہت بڑی سنگر ہے. انہوں نے جناب کی ٹویٹ کر دی کہ نئی دہلی میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اور بھارت کے کسانوں پر تشدد کر رہی ہے پولیس. Why are not we talking about it؟ انہوں نے صرف اتنا سا سوال کیا، بس اتنا سوال، اور اس سوال کو دیگر کئی انٹرنیشنل سیلیبریٹیز نے انکلوڈنگ گریٹا تھنبرگ جو کہ ماحولیات کے حوالے سے ایک عالمی ورکر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا، انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا، دیگر کئی سیلیبریٹیز نے بھی ٹویٹ کیا. لیکن بھارتی سیلیبریٹیز وہ آپ کو پتہ ہے نا بیچارے، وہ اگر حکومت کے خلاف بات کریں تو ان کی آواز دبا دی جاتی ہے یا سیدھا اس کو لنک کیا جاتا ہے پاکستان سے. مطلب اب یہ آواز ہمارا دبانے کا طریقہ کار ہے نا. ان کو انٹرنیٹ پہ ٹرول کیا جاتا ہے، ان کے کانٹیکٹ ختم کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف میڈیا پہ مہم کھڑی کی جاتی ہے، ایک عوامی جذبہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان کو پرو پاکستان قرار دے دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے آرٹسٹ کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے. لیکن کچھ آرٹسٹ ہیں جو کہتے ہیں جناب ہم حکومت، اگر آپ حکومت کے حق میں بات نہیں کر سکتے تو آپ جو لوگ دھرنے میں موجود ہیں ان کی مخالفت میں بھی بات نہ کریں، اور وہ سائلنس اپنا لیتے ہیں. لیکن جناب کنگنا رناوت جو کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ان کو بڑی کامیابیاں ملی، انہوں نے بڑی اچھی اچھی فلمیں دی، لیکن اس کے بعد جب سے انہوں نے اپنا منہ کھولا ہے تب سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ بند ہی رہتا. بہت ہی عجیب و غریب قسم آپ صرف رائٹرز کی اسکرپٹ ہی پڑھے تو بہتر ہے. لیکن شفاعت کل جس طریقے سے وہ ٹرول ہوئے، کیونکہ انہوں نے پھر ایک بار بولا کہ جی ہم اس لیے اس حوالے سے بات نہیں کرے، ریحانہ کو جواب دیتے ہوئے ری ٹویٹ کیا کہ جی ہم اس حوالے سے اس لیے بات نہیں کرے کیونکہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فساد پھیلے تاکہ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے چائنا کی تو وہ ایک کالونی بن جائے، مطلب اور یہ تمام تر حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. اور ہم تم لوگوں کی طرح نہیں ہے یو فول ڈمیز کہ ہم لوگ جیسے یو ایس جو ہے وہ چائنا کی غلط کالونی بن گیا. تو مطلب عجیب و غریب اس حوالے سے اور دیگر بھی کے حوالوں سے ہم نے بات کرنی ہے، مگر سب سے پہلے کہاں نظر ڈالیں گے جناب؟ ٹاپ سٹوریز پہ. احتجاج کرے بھارتی کسان، ذمہ دار ٹھہرے پاکستان. بھارت پر تنقید کرے دنیا کا کوئی بھی انسان، بھارت کو ہر بیان کے پیچھے نظر آئے بس اور بس صرف پاکستان. واہ 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 واہ، کیا آپ نے مطلب بیان دیا ہے یہاں پہ. واہ واہ واہ، مطلب آپ کا نام میں سوچ رہا ہوں کہ مدیحہ نقوی غالب رکھ دیا جائے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہر روز آپ اوپننگ کرتی ہیں، آپ ایک بھرپور تک بندی کرتی ہیں، یا مدیحہ نقوی ملک رکھ دیا جائے، انو ملک کے ساتھ میں لاتے جلاتے. لیکن جناب اتنی اچھی میں اچھی چنگی والی سادات بھی کوڑی. لیکن شفاعت اب یہ تو ہم تک بندی تو کر رہے ہیں، لیکن بھارت وہ چیز کر رہا ہے جس کی کوئی توقع نہیں بنتی. ہر ایسا بیان سامنے آتا ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا. جیسے ابھی آپ دیکھ لیں ہم ریحانہ کے والے سے بات کر لیں، انہوں نے بھی فارمرز کے لیے ان کی رائٹس کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی. انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کر دی جس پر انہوں نے فوراً اس کو لنک کر دیا پاکستان کے ساتھ. شفاعت آپ نے تو نہیں ویسے ریحانہ کو پیسے دیے تھے اس ٹویٹ کے؟ نہیں، میں نے نہیں دیے تھے. البتہ ریحانہ کی ذوالفقار بخاری صاحب کے ساتھ ایک پرانے زمانے کی تصویر ہے، وہ انڈینز نکال کے رہا اور کہا جی اس تصویر سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ٹویٹ ریحانہ نے پاکستان کے ایما پر کی ہے اور پاکستان کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. سانوں تو پتہ ہی نہیں سی. لیکن جناب بھارت میں کسان احتجاج کریں، 2 مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی موقف ہے اور وہ یہ کہ جو زرعی اصلاحات کا پیکج لایا گیا تھا، جو ایکٹ لایا گیا تھا، اس کو واپس لیا جائے. اس سلسلے میں کسان تقریباً 10,000 ٹریکٹرز کے ساتھ 26 جنوری کو انہوں نے دہلی میں مختلف علاقوں میں ہنگامے کیے، جس کے بعد یہ تحریک اب ایک نئے ایگریشن میں داخل ہو گئی ہے، جس کے بعد نئی دہلی کے اطراف میں انٹرنیٹ پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اور بہت ساری اسٹیٹس میں شفاعت، اگر ہم ہریانہ کی بات بھی کریں تو 22 میں سے آلموسٹ 14 اسٹیٹس میں تو ابھی تک جو ہے انٹرنیٹ وہاں پر واپس آیا ہی نہیں. اس حوالے سے رپورٹ تیار کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
शफात वैसे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बाइपोलर हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे पहले जावेद अख्तर के बारे में भी ऐसी बात की थी। ये दुश्मन है, कहीं पाकिस्तान की भी दुश्मन है, मुसलमानों की भी दुश्मन है, उनको मौका चाहिए होता है कोई ना किसी बात करने का, जब फिर जावेद अख्तर साहब ने उनको कर दिया हर जाना। तो जब उस हवाले से समाअत के लिए भी जारी थी तो उसमें कहा था कि गीदड़ों की फौज में एक शेरनी निकली है। ये क्या भारत हो का गया एक अमूमी रवैया बनता हाँ। जा रहा है। कंगना रनावत हाँ। सिर्फ इस मामले में अकेली नहीं है, हाँ। ये भारतीय मीडिया का एक अमूमी रवैया है जिसकी तस्वीर और जिसकी डिपिक्शन हाँ। कर रही हैं कंगना कंगना रनावत, रनावत और exactly, बहुत हाँ। सारे ऐसे अदाकार, भारतीय अदाकार जो कि पाकिस्तानी अदाकारों को कास्ट कर रहे थे, पाकिस्तानी गुलकारों के गाने शामिल कर रहे थे, उन पे उनको बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। बहुत सारे अदाकारों ने कहा जनाब कि पाकिस्तान या भारत या सरहद के उस पार कोई भी अदाकार या गुलकार है तो उसके फ़न की कदर है। ये मौक़िफ़ लेके भारतीय अदाकार हमेशा उठते आए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाया गया है। अब इस मौजूदा दौर में पाकिस्तानी गुलकार, समाजी रहनुमा और सियासतदान जवाद अहमद साहब ने भारतीय किसानों के लिए एक गाना, एक ट्रैक बनाया कुछ दिन पहले, और देखते ही देखते तो वो गाना, वो ट्रैक इस वक्त उन तमाम धरनों में, उन तमाम जलसों में गूंज रहा है जो भारतीय हुकूमत के खिलाफ हैं, और ये प्ले करने वाले कोई और नहीं, खुद भारतीय किसान है। हमारे साथ इस वक्त जवाद अहमद साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जवाद भाई हमें वक्त देने के लिए। जवाद भाई, ये पहले तो ज़रा बताइएगा, आपने ट्रैक बनाया भारतीय किसानों के लिए और वो फ़ौरन से पेशतर उसको भारतीय किसानों ने अप्रिशिएट भी किया, उसको रिकग्नाइज भी किया। क्यों ख्याल आया आपको कि भारतीय किसानों के लिए ट्रैक होना चाहिए? अच्छा, मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे इंटरनेशनलिस्ट होने का जो है सबूत है, मैं नेशनलिस्ट भी हूं लेकिन इंटरनेशनलिस्ट भी हूं। मैं तमाम ह्यूमैनिटी के लिए समझता हूं कि खुशहाली होनी चाहिए, लोगों के लिए तमाम उसूलियात होनी चाहिए, जरूरियात उनकी पूरी होनी चाहिए, दुनिया में रहते हैं। कि मैंने ये जो गाना बनाया था, ये असल में मैंने पाकिस्तान के लिए बनाया था, मतलब ऐसे ही बनाया था किसानों के लिए, और ये 5 साल पहले बनाया था। अच्छा। अभी टाइमिंग मुझे लगा कि ये बड़ी अच्छी है, क्योंकि देखें जब लाखों लोग निकलते हैं ना अपने हकूक के लिए, लाखों, नंबर बड़ा काउंट करता है, तो इसका मतलब होता है कि वो कोई ग्रीवेंस ऐसी है कि जिसके अंदर ये सब लोग समझते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। दुनिया में जो तहरीकें चली हैं या जो इनकलाब हुए हैं, उनमें नंबर ही काउंट करता है। अगर लाखों लोग बाहर निकल आए, हजारों में निकले तो बड़ी बात होती है, लेकिन जब लाखों और उसके बाद करोड़ों में चली जाए बात, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल एग्जैक्टली। और जैसे जवाद साहब एक बार हमारे शो में भी आए थे, जवाद अहमद, और उन्होंने हमारे शो में भी इस किसान के गानों के हवाले से जिक्र किया था जिन्होंने बनाया था। और ये गाना कोई आज का नहीं बनाया, ये गाना कई साल पहले बना चुके हुए थे, और जो आज हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली में भारत में किसानों की आवाज़ बना हुआ है। अच्छा, आप प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा जवाद। अच्छा, मैं इसलिए ये कहना चाहूंगा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि एक फिल्म थी महेश भट्ट ने वो बनाई थी, वो लम्हे, उसमें कंगना जो थी है उसकी हीरोइन थी। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं इनसे मिला भी था, मैं हैरान हूं कि मैंने इनका ये जो एक नया रूप देखा है कुछ अरसे से, कि ये हर वक्त जो है ये पीस को खत्म करने के लिए और दोनों मुल्कों के दरमियान में कोई जैसे कोई जंग करवाने के लिए, और फिर वो एक खास किस्म का मजहबी एक जो मसला है जो उधर जो हिंदुत्व का जो मामला चल रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी गलत बात है। इंडिया तो सेक्युलर कहता है अपने आप को, तो इस तरह की चीजें होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उनको भी उसको भी सपोर्ट करती है, और बहुत ही ब्लेटेंटली मतलब वो कुछ ऐसी चीजें बातें करती हैं कि बड़ा मैं हैरान होता हूँ, और मुझे अफसोस होता है कि मैंने इनके साथ उस वक्त काम किया। तो इस तरह के और भी एलिमेंट्स हैं जो कि इंडिया में इस तरह की बातें करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेम आवाजें भी उठनी चाहिए। उधर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त किसानों की मूवमेंट को, और वो भी अपने मुल्क में बैठ के उन लोगों के लिए कर रहे हैं ना, जो कि लोग समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसलिए मेरा ये करना बड़ा अच्छा था, और ये किसानों की तहरीकें दुनिया भर में उठनी चाहिए। बड़े परेशान है किसान हर जगह, ये गल्ला उगाते हैं हमारे लिए, हमारा खाना जो कहते हैं ना, पुटिंग योर फूड ऑन द टेबल, तो वो तो यही करते हैं ना। ये तो एक कहावत है अंग्रेजी में कि आपकी टेबल पे, आपकी मेज पे खाना जो आता है वो इनकी वजह से आता है। सही। तो अगर ये इनके साथ ज्यादती हो रही है तो हम उनके साथ खड़े होंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे दुनिया में कहीं भी हो।
صحیح. اچھا اس ساتھ میں آپ کو کیوں لگتا ہے ابھی دیکھیں مطلب کسان بیچارے ان کی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, وہ اپنا راشن لے کے نکلے ہوئے ہیں, وہ آلریڈی سفر کر رہے تھے. آپ کو سوچے جب وہ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر رہے ہیں, وہ تب بھی سفر کر رہے ہیں, ان کا گھر سفر کر رہا ہے, پولیس سے مار وہ علیحدہ کھا رہے ہیں, اور تمام تو چیزیں بجائے کہ وہ اپنے اندر کا معاملہ حل کریں, ان کو سب چیزیں لگتی ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہے. اب وہ بیچاری اگر ریانہ نے بھی کل ایک ٹویٹ کر دی جس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی, اس میں بھی انہوں نے کہا بھائی یہ تو پاکستان کروا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جواد کہ مطلب ایسی کیا مصیبت ہے, وہ اتنے کیوں عقل کے اندھے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو جائے, دو چڑیاں بھی آپس میں لڑ پڑیں تو جو چڑیا تھوڑی دلیر ہوگی وہ کہیں گے چڑیا پاکستان سے آئی ہے. یہ کیوں رویہ ان کا ایسا؟ میں وہی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ انڈیا میں نا بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ تو جنگ چاہتے ہیں پاکستان سے, اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ وہ کوئی لڑائی یا دشمنی کرنا چاہتے ہیں, اور مطلب وہ بہتر آوازیں ہیں میرے خیال میں. لیکن افسوس ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے کہ جو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بیوقوفانہ, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس خطے میں جو ہے کوئی امن ختم ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو لوگ اس طرح کے ہیں جن کے جو تھوڑے سے لبریٹڈ ہیں, میں کہوں گا جو تھوڑا سے آزادی, جن کے دماغ جو ہیں وہ جکڑے نہیں ہوئے غلامی کی زنجیروں میں ابھی تک, تو ان کو چاہیے کہ انڈیا میں کوئی بہتر بات کرے. لیکن بہرحال یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے, اور پاکستان سے بھی اگر ہم نے گانا کو اس طرح کا کیا ہے تو ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم کوئی امن کے خلاف نہیں ہیں, اسپیشلی پاکستانی تو ہے ہی نہیں. اور میرا اگر میں اپنے آپ کو بات بتاؤں تو میں تو ہمیشہ انسانیت کی بات کرتا ہوں, لیکن یہ بات غلط ہے کہ ہم جب بھی کوئی کسی مجبور یا محکوم یا مظلوم جتھے یا گروپ کے ساتھ کھڑے ہو دنیا میں کہیں بھی ہو, تو پھر اس کے خلاف بات کی جا رہی, کہا جائے کہ یہ شاید پاکستان سے سپورٹ دی جا رہی ہے. ہم نے کیا سپورٹ دینی ہے, میں تو سیاست میں تو ہوں لیکن میں حکومت میں تو نہیں ہوں, اور نہ تو میں نہ کوئی پالیسی ہے میری ایسی کہ میں ان کے خلاف کوئی بات کروں. میں تو ایک آرٹسٹ کے طور پہ کام کیا ہے, اور میں نے جیسے کہا کہ میں آگے بھی اگر مجھے لگا کہ کہیں پہ بھی امن کو خطرہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی بات ہے, تو میں ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی کھڑا ہوں گا. بالکل جواد, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آرٹسٹ جس بھی معاشرے میں ہوتا ہے اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سینس کا, لاجک کا, ریزن کا ساتھ دے گا, انسانیت کا ساتھ دے گا. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. آرٹسٹ اپنی پولیٹیکل افیلیشنز ذرا بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہیں, اور جب سامنے آتے ہیں تو وہ انسانیت کے نام پہ سامنے آتے ہیں. بھارت میں ایسا منظر دیکھنے میں نہیں آ رہا, اور خاص طور پہ گزشتہ 8 سالوں میں جب سے یہ مودی کے ٹرمز چل رہے ہیں, مسلسل بھارت میں ایک انتہا پسندی کی فضا ایسی ہے کہ سارے آرٹسٹ ایک ایک کر کے خاموش ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کیا آرٹسٹ جو ہیں ان کو اپنا بزنس کھونے کا ڈر ہے, یا وہ اپنی جان ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو فیشزم ہے نا, یہ پوری دنیا میں ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو, گھروں کے بل دینے کو, کرایہ دینے کو, تعلیم کے لیے, علاج کے لیے پیسے تو ہے نہیں, اور ایک ایلیٹ کیپچر ہے پوری دنیا میں اکانومی کے اوپر. تو انڈیا میں بھی بہت برا حال ہے, اور اس کی وجہ سے ایک جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, اور وہ بڑے عرصے سے ہو رہی ہے. اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کی آوازیں آنی چاہیے, وہ بھی میرا خیال ہے وہ خوف کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں میں کشمیر میں جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سے آج تک انڈیا جو ہے اس نے ایک ہر دھرمی کا, انڈیا تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ میں انڈینس کی اور انڈیا کی بات نہیں کرتا, میں انڈین حکومت کی بات کرتا ہوں موجودہ جو ہے نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جس قسم کا یہ کام کیا ہے اور پھر بہت ہی ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس اپنے ایکٹ کے پیچھے, میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی کنڈیم کرنا چاہیے اس کو پوری دنیا کو. اور ابھی بھی جو لوگ آرٹسٹ ہیں, جو کرکٹرز ہیں, جو لوگ اور بھی جو مختلف سماجی حوالے سے جو کام کرتے نظر آتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں اور پھر کہوں گا کہ انڈیا میں ان لوگوں کی آوازیں زیادہ آنی چاہیے تاکہ ایک اچھا جو ہے ماحول پیدا ہو. یہ نہ ہو کہ ہم کبھی کسی کے بارے میں بھی, کسی کے حق میں بھی بات کریں تو لوگ ہمارے خلاف اس لیے بات کریں کہ میڈیا کے خلاف ہے. ہم تو انسانیت کے ساتھ ہیں, ہم کسی کے خلاف بالکل انسانیت کے ساتھ ہیں, اور جہاں پاکستان میں بھی انسانیت کے حوالے سے بات ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ جی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں جناب. 2021 کا سال بنیادی طور پہ مقبوضہ کشمیر میں مردم شماری کا سال تھا, لیکن مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کے بھارتی ہتھ کنڈے شروع ہو چکے ہیں. مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا منصوبہ سامنے آ رہا ہے. نریندر مودی کمر کس چکا ہے.
डेमोग्राफी तब्दील करने का मकसद किसी भी राय शुमारी के नताइज को सबोताश करना होता है। हमारे नुमाइंदे लईक अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी लईक। जी, यहाँ पर जो सबसे पहला पहलू है कि 2021 में मोदी सरकार ने जो मकबूजा कश्मीर में मरदमशुमारी होनी थी उसको 5 साल के लिए मौखर कर दिया है और अब ये कहा जा रहा है कि 2026 में ये मरदमशुमारी होगी और इसके पीछे एक बाकायदा प्लानिंग के तहत मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने के इकदाम किए गए हैं। तकरीबन 70% से ज्यादा जो आबादी है मकबूजा कश्मीर की 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक वो मुस्लिम अक्सरियती आबादी है और उसमें से 28% हिंदू है, 4% सिख है और चंद परसेंट बहुत ही कम परसेंटेज है बुद्ध मत के पैरोकारों की। और इसी तरह अगर मकबूजा वादी को देखा जाए तो 55%, जबकि जम्मू और लद्दाख में 2% अकलीती आबादी है। मजमूई जो आबादी है 70% है मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की, जिसको अब अकलियत में बदलने के लिए मुख्तलिफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाहर से लोगों को ला के जम्मू में, कश्मीर में, वादी में, लद्दाख में और दीगर जगहों पर आबाद किया जा रहा है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जो भारत की तरफ से आर्टिकल 370 का गैर आईनी तरीके से खत्म किया गया था, उसका बुनियादी मकसद यही था कि बाहर से लोगों को ला के यहाँ आबाद किया जाए, जो कि अकलियत में के लोगों को अक्सरियत में बदला जाए। मुस्लिम जो है उनको मुख्तलिफ जो उनके हकूक थे वो भी गसब किए गए। लॉकडाउन तकरीबन 550 रोज होने वाले हैं जो इस इलाके में जारी है। लोगों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया है और ये भी इतलात सामने आई है कि नए डोमिसाइल लॉ के तहत 18.5 लाख से ज्यादा लोगों को कश्मीर का डोमिसाइल भी दे दिया गया है और ये तमाम के तमाम लोग मुसलमान नहीं हैं और गैर कश्मीरी भी, इसके अलावा गैर कश्मीरियों को भी यहाँ पे बसाया जा रहा है। गोरखा कम्युनिटी के 6,600 से ज्यादा जो रिटायर्ड फौजी है उनको भी डोमिसाइल दिया गया है। इसी तरह डोमिसाइल जारी करने का जो इख्तियार है उसके हवाले से भी तरामीम की गई है और तहसीलदार को यह हक दे दिया गया है। अब बाहर से हजारों जो लोग मजदूर भी आए हुए हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। बिहार से लाकर तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ बसाया गया है और मकामी जो आबादी है उसको मरहलावार रफ्ता रफ्ता अकलियत में बदला जा रहा है, जिसका पूरा मकसद यही है कि कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील कर दिया जाए और 2026 में जो नई मरदमशुमारी हो उसके जरिए यहाँ पे जो अक्सरियत है उससे अकलियत बनाकर अपने मजमूम अज़ाइम को आगे बढ़ाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया लईक रहमान। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, भारत के औछे हथकंडे सामने आ रहे हैं। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब बदलने के लिए एक और हथकंडा जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रही है और एक मुतनाज़ इलाके में राय शुमारी को, मरदमशुमारी को मुअत्तल करके वहाँ की डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हमारे नुमाइंदे लईक रहमान हमें बता रहे थे। और अब यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आवाम की मुश्किलात ऐसी हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। अब तो डेयरी फार्मर्स ने भी महंगाई का शिकवा करते हुए जो तमाम तर बोझ था वो आवाम के कंधों पर डाल दिया है और दूध की कीमतों में फ़ी लीटर 20 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दूध की फ़ी लीटर कीमत 140 रुपये हो जाएगी। इनफैक्ट हो गई है। जी जनाब, और दूध की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? बज़ाहिर कोई वजह समझ में नहीं आ रही। सरकारी कीमत अब भी 94 रुपए फी लीटर, 94 रुपए फी लीटर की सरकारी कीमत है, लेकिन दूध की कीमत पहले 120 रुपए हुई, फिर उसके बाद इसमें मजीद इजाफा हुआ और अब मजीद इजाफा होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ये इजाफा? क्या वजूहात बन रही हैं? अभी तक हम भी क्लियर नहीं। मतलब वैसे क्या रीजन क्या समझ में आती है? ट्रांसपोर्टेशन में भी, क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्टेशन पे, टमाटर महंगा हो जाए जी, ट्रांसपोर्टेशन होती है, सब्जियां महंगी हो जाए ट्रांसपोर्टेशन जी, फ्रूट्स महंगे हो जी ट्रांसपोर्टेशन जी, ऑयल की कीमत बढ़ गई है। भाई अगर इतनी महंगाई होगी तो पर लीटर मतलब आप 2 रुपए 3 रुपए बढ़ाते और आप कह सकते हैं भाई देखिए अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, लेकिन एक साथ ही 20 रुपए गज जम लेना और शफात बाहर हम देख रहे हैं। समझाएं पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है?
पेट्रोल की कीमत में खाते 3 रुपए की बढ़ी चले है। डीजल अगर कर दें 4 रुपए बढ़े, अभी देखा जाए पूरे महीने में 16 रुपए बढ़ी है। हाँ 116 तक हो गई है अब जो 116 तक है, लेकिन टोटल 16 हो रुपए गई। बढ़ी है। हाँ तो यानी देखो 4 रुपए फी लगातार। लीटर का इजाफा हुआ है डीजल की कीमत में, लेकिन दूध की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो गया। ये शबाब, क्या साइंस? और अगर आप निकले बाहर दुकानों में तो वहां पे 20 रुपए इजाफे से नहीं मिल रही, वहां पर आपको ये 30-35 रुपए फी किलो इजाफे के साथ में, लीटर के साथ मिल रहा है आपको। 30-35 रुपए फी लीटर का लीटर, इजाफा हो रहा है। वजह क्या बन रही है? डिप्टी कमिश्नर्स क्या कर रहे हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटीज क्या कर रही हैं? वो जरा बाद में देखेंगे। शाकिर गुज्जर साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर क्या वजह बन रही है? असल में जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इदारे का। दूध की कीमतों के हवाले से जो हमें आप ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, ना तो इसके ज़िम्मेदार डेयरी फार्मर्स हैं, ना कमिश्नर कराची, ना डीसीज। इसके पीछे सबसे अहम चीज़ है इसके इनपुट्स की कीमतें। दूध की कीमतें ख्वाहिशात पे तो नहीं बढ़ाई जा सकती ना, आपकी, कमिश्नर की, आवाम की या मेरी। इनपुट्स की कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। जानवर की, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना होगा, आखिर को दूध और गोश्त की कीमतें इतना ऊपर क्यों जा रही हैं? क्योंकि आप जानवर की नस्ल कशी कर रहे हैं, आप रोक नहीं रहे हैं। आप दुनिया के चौथे बड़े दूध के पैदावारी मुल्क कहलाते हैं और आप जाली दूध पी रहे हैं। तो इसके लिए आपको काम करना होगा, इदारों को काम करना होगा, और पॉलिसी साज ऐसे लोग इसके ज़िम्मेदार हैं जो ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि अजनास जो डेयरी फार्मर्स जो दूध और गोश्त की पैदावार में जो अजनास इस्तेमाल थोड़ा सा होते हैं, जरा वो हमारे- मेरी जरा- प्लीज जरा- बात पूरी होने दे प्लीज आप मेरा करें बात, मौका लेकिन लेने हमें के ये लिए भी बताना। समझाएं। देखिए जो अजनास इस्तेमाल होते हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। शाकिर साहब और आपसे बात हाँ, जारी रखेंगे, जी। आपसे बात जारी रखें। फिलहाल आपको जनाब रावलपिंडी लेके चलते हैं, जहां इस वक्त टॉस हो चुका है और बाबर आजम टीम से इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान अलबत्ता टॉस जीत चुका है। बाबर आजम को सुनते हैं जी। सेम टीम है। सो इस वक्त क्या थॉट रन कर रही है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि आप 1-0 अप हैं, उस लीड को बरकरार करना आपका प्रेफरेंस होगी या 2-0 के साथ ये सीरीज एंड करेंगे? बिल्कुल रमीज भाई, पॉजिटिव है हम। पिछले मैच से काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और इस मैच में भी वैसे खेलेंगे जिस तरह हमने लास्ट मैच में खेला था, कि कभी किसी टाइम पे रिलैक्स नहीं होना, जो चीज़ हाथ में है उसको फिनिश करके आना। कप्तानी एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राइट, सो Pakistan are batting first. Your initial thoughts of the track? I think it's a bit dry, to be honest. Obviously, there's a lot of platelets. I think it will get a little bit up and down the more goes into the game. So that's kind of what we assessed. Got to ask you about the captaincy thing. This would be your last gig as South African skipper. You want to a memorable time of it and do as best as you can. Yeah, sure. I guess a win would be nice. It would be a great way to finish off this tour. Yeah, I mean, talk us through the pressure of being 1-0 down. I mean, do you want to be desperate or do you want to be intelligent about the entire thing? I think a bit of both. It would do us good. I think if we show our hunger out here and we come out and we play to the ability we know we can, I think we'll be all right. Any team changes? We got one. VM Mulder comes in for Lungi and Gidi. Have a good one. Cheers. Right, news at the toss is that Pakistan have won the toss. रावलपिंडी में पाकिस्तान जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और कराची में जो 17 रुकनी स्क्वाड था उसी स्क्वाड के साथ आज भी पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरेगी। हमारे साथ शाकिर गुज्जर साहब मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि एकदम जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने अस खुद फैसला लेते हुए 20 रुपए लीटर जो दूध की जो कीमत बढ़ाई है, क्यों रीजन इसकी है? क्यों? मुझे ये तो पहले आप बताइएगा, आप लोगों ने खुद फैसला ले लिया कि हम 20 रुपए लीटर की कीमत बढ़ा रहे हैं, आप लोगों की किसी से बात ही नहीं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, आप किसी को तो एतमाद में नहीं जी हम इतनी प्राइस बढ़ा रहे हैं, या फिर ये टोटली एंड होली आप ही का डिसीजन होता है? असल में जी देखें, हमें वायलेशन करने का कोई शौक नहीं है। यानी कि आप मानते हैं आपने वायलेशन किया? देखें जरूर ना जी, देखें जब ऐलान एक कमेटी कर रही तो वायलेशन है ना, जबकि जिम्मेदार कमीशन कराची रेट मुकर्रर कर रहे हैं और हमने मजबूर होकर चीज़ों को किया। पिछले 2 साल भी वायलेशन की गई, 110 रुपये लीटर और 120 रुपये लीटर गैर कानूनी रेट है, हम उसे मानते हैं और जाहिर सी बात है उसके जिम्मेदार नोटिफिकेशन ना करने के कमिश्नर कराची हैं। तो हम चलें दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुतालिक जो बातें हो रही हैं, देखें जी शहर में जो दूध आप लोग ख़रीदते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होती है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वो है जानवर का डेप्रिसिएशन।
जो एक भैंस हम लेते हैं 2.5 लाख रुपए की, वो 1 लाख रुपए की स्लॉटर होती है, और 1,50,000 जब 270 डेज लैक्टेशन पीरियड पर डिवाइड किया जाता है तो वो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है रोज़ाना का नुकसान जो है वो। तो ज़रूरी है कि कमर्शियल डेयरी फार्मर्स को शहरों के मज़ाफ़ात में ज़मीनें दे दी जाएं कि वो जानवर को रिसाइकिल करें, उनके डे ओल्ड बच्चे को जो वो फ़रोख्त कर देते हैं उनसे उनकी जानें बचाएं, उन्हें स्लॉटर ना करें। और आपको पता है सालाना 15 लाख, प्लीज मुझे पूरा होने दे प्लीज, जी, जी, मेरा मौक़िफ़ लेना है आपने। जी, 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 देखें सालाना मैं प्राइम मिनिस्टर साहब देखते हैं, ज़रूर मेरी बात उन तक पहुंचनी चाहिए कि हम सालाना 15 लाख मादा जानवरों का स्लॉटर करा रहे हैं जी। हम वतन अजीज़ का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं हम। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को समझना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। सर मुझे बात देखिए बताएं, डे ओल्ड बच्चे को पहले तो स्लॉटर हम तो मिलता नहीं है। आपकी बात violation मुकम्मल होगी। जी, अच्छा, जी। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो भैंस जो डेयरी फार्म से निकल के स्लॉटर हाउस जाती है, खुद से तो नहीं जाती, ज़ाहिर है उसको बेचा जाता है, तो इसका मतलब है डेयरी फार्मर्स को पहले एजुकेट करना है कि वो अपनी भैंसें स्लॉटर हाउस में ना भेजें। ये बात से आप एग्री करेंगे? जी, मैं डेयरी फार्मर एजुकेटेड है इस सिलसिले में। मैं इस आपको सिलसिले में बताऊं, तो फिर ये तो आप नहीं कह सकते ना कि जी भैंसें स्लॉटर कोई और कर रहा है, इस मैं वजह से हमारे समझा डेयरी देता फार्मर की हूं। भैंसें कम मैं हो रही हैं। समझा देता हूँ जी जी। आपको। कैटल कॉलोनी जो बनाई गई थी 20,000 जानवरों के लिए बनाई गई थी, आज वहाँ पे 4 लाख जानवर हैं, मवेशी हैं। आपके पास जगह नहीं है जानवर खड़ी करने के लिए। 20,000, ठीक है, इसका मतलब है फायदा जी, कराची की आबादी के साथ कैटल कैटल कॉलोनी भी बड़ी, और एक तरफ समंदर से जाके लग गई, एक तरफ पोर्ट कासिम से, और एक तरफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से। और इसी पे कैटल कॉलोनीज की आप जी, बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कोई नई कैटल कॉलोनी नहीं बसाई। ठीक है, जानवर को स्लॉटरिंग से रोकने के लिए कोई महकमे, चारों सूबे के किसी महकमे ने काम नहीं किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी को और तमाम सियासी जमातों को खतूत लिखे हमने। ये नस्ल कशी भी जरा बाद में बात करते हैं, हम सिर्फ आपसे ये बात कर रहे हैं कि ये जो आपने खुद माना कि जी वायलेशन हमने की है, जो 20 रुपए लीटर आपने दूध की प्राइस बढ़ा दी, तो इससे मतलब ये तो आवाम पर बोझ आ गया ना। हम तो ऑलरेडी इतनी महंगाई थी, रीजन क्या आपने 20 रुपए क्या आप हमें वो जरा कैलकुलेशन करके बताना कि क्यों 20 मैंने रुपए कास्ट ऑफ बढ़ाई है। प्रोडक्शन शेयर की है तमाम आप लोगों से ना। 149 रुपए 50 पैसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है फी लीटर। हम अब भी सब्सिडाइज कर रहे हैं आप लोगों को। अच्छा, जी हाँ, तो मजीद बढ़ाएंगे? मजीद बढ़ाएंगे जी। कितना तक? इंशाल्लाह तकरीबन मई इंशाल्लाह में 15 रुपए इंशाल्लाह लीटर करे और गुज्जर बढ़ाएंगे। साहब आप नहीं जी, मैं हकाइक बता रहा हूँ आपको। मैंने 8 माह पहले भी आपको कहा था कि हम रेट बढ़ाएंगे, हमने फिर रेट बढ़ा दिया। भाई तो आप लोग हम रेडी हो जाएं। कमिश्नर साहब को 20,000 इन्होंने खतूत लिख चुके हैं जी। शाकिर गुज्जर साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह जी ये भी प्राइस अभी मजीद बढ़ेंगे, ये भी कुछ भी नहीं। अगर आपको लग रहा है और आपने घर में वावेला मचाया हुआ है कि 20 लीटर आपका अगर दूध की प्राइस बढ़ी है तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब 20 रुपए जो बढ़ी है तो ये आगे मजीद बढ़ेगी। सर कितनी बढ़ेगी बता दें? इंशाल्लाह 15 से 20 रुपए मजीद। 15 से यानी कि 35, 160, 70 का दूध हो जाएगा। देखें ना जी, बीच में यहाँ 3 डायमेंशन में कारोबार है ना जी। बीच में होलसेलर है जो एक ह्यूज प्रॉफिट सर, रखता कोई है, तो आगे mechanism रिटेलर होता है ना, सर, तो कोई जब तो कास्ट ऑफ mechanism प्रोडक्शन होता है मेरी ना। 150 रुपए लीटर है तो आप 200 रुपए लीटर पियोगे ना। कैसे कम होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? देखें जी, जानवर की नस्ल कशी रोकना होगा फार्मर्स को। ये 2-3 माह का काम है जी, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आप अपने जानवर को जेनेटिकली इंप्रूव करें ना जी, जो दुनिया ने किया। दुनिया की ब्रीड दे रही है 100 लीटर रोजाना, 40 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर, आपकी दे रही है 8 लीटर। आखिर कोई दारों सर को वो तो काम आपकी करना चाहिए इन्वेस्टमेंट है ना। ना। जब आप उसको चारा अच्छा नहीं देंगे, जब आप उसको अच्छी खाद नहीं देंगे तो वो बेचारी और क्या करेगी? मेरी बहन एक प्रोड्यूस बात क्या समझ करेगी लें वो? आप, हम अपने मवेशी से, अपने जानवर से, अपने बच्चों से ज्यादा इश्क करते हैं। उसे रोजाना सुबह शाम नहलाते हैं, अच्छे से अच्छे अजनास खिलाते हैं हम, ताकि प्रोडक्शन सर, अच्छी किसी हासिल तरह हो। माँ बाप आपके डेयरी फार्म्स में आके मैं देख यहाँ ही पे लेते हैं। देखें, अगर नस्ल यहाँ जो पाकिस्तान में मौजूद है अगर वो अच्छी नहीं है तो नस्ल किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट भी की जा देखें सकती जी, है। अभी बहुत आई सारे है ऐसे यूएसए ममालिक से हैं। इस हफ्ते वो आया जहाज बड़ा, जिसमें 2000 मवेशी तकरीबन आए हैं, आला नस्ल के हामिल। पर उसे कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए। पर जरूरी है कि हम अपनी नीली रावी इस वजह से प्राइस बढ़ी है कुंडी और दूध जो हमारी साहिवाल है, हमारी रेड सिंधी है, हम उसे इंप्रूव करें। रॉकेट साइंस थोड़ी है जी, जब दुनिया ने किया हम भी कर सकते हैं। पर उसके लिए इदारों को काम करना होगा, फार्मर को फैसिलिटेट करना होगा उन्हें। सही, बिल्कुल बात दुरुस्त है, फार्मर को फैसिलिटेट करना होगा। इस वक्त अगर हम कराची के हवाले से अगर बात करें, आपको क्या लगता है सिवाय मजीद एक कैटल कॉलोनी के इजाफे के, अगर मजीद एक और कैटल कॉलोनी बनाई जाए और क्या हो सकता है कि कराची के मुजाफात में एक और कैटल देखें कॉलोनी जी, बनाए? कराची में छोटी बड़ी 29 कैटल कॉलोनीज है, छोटी बड़ी।
ضروری یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ گھارو گاڑو دھابے جی وہاں پہ زمینیں اویلیبل ہیں, وہاں صرف جانوروں کو ریسائکل کرنے کے لیے ہمیں جگہ فراہم کر دی جائے, ہم دودھ کی پیداوار بھی بڑھا لیں گے, قیمتیں بھی ہم کم کر دیں گے انشاءاللہ. اور لیکن ضروری ہے, آپ نے بس یہ کہہ دیا کہ آپ کمشنر ریٹ پہ دودھ نہیں بیچیں گے, آپ ایویلیویشن کریں گے, آپ نے بولا کہ مزید 10 سے 15 روپے فی لیٹر دودھ کی قیمت بڑھے گی, اپنی منمانی کے تھرو آپ کریں گے, اور یہ ابھی آپ نے بھی بولا کہ 200 روپے فی لیٹر بھی دودھ کی قیمت ہو جائے گی, تو عوام آپ لوگ, یہ میں نے کہا جی, میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس بات کو, اور میں ایک اور بات میں کہوں گا کہ کمشنر کراچی صاحب سے ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, اگر وہ ہم سے بیٹھ کے بات کریں گے, کیونکہ دیکھیں جی یہ ہم سے بات نہیں کرتے ہیں پچھلے 3 سال ہو گئے. میں نے جی دیکھیں 2018 میں جو نوٹیفیکیشن لیا تھا, میں نے کیس جیتا تھا سندھ ہائی کورٹ سے, آرڈرز کروائے تھے, اس پہ نوٹیفیکیشن ابھی بات ہوئی, یہ جو آپ نے از خود 20 فیصلہ خطوط لیا, لکھ چکا ابھی جی جو میں نے کوشش کی تھی بات کرنے کی, بات نہیں ہو سکی ان سے, ہم نے خطوط تحریر کر بتائیں, ریٹیلر جو دودھ فروش ہے اس کو کتنا منافع مل رہا ہے فی لیٹر؟ دیکھیں جی, ہم جو اس وقت ریٹیلرز کو دے رہے ہیں 102 روپے 40 پیسے فی لیٹر دودھ دے رہے ہیں, تو وہ اگر 170 ہو گیا تو وہ تقریباً 60 روپے فی لیٹر منافع بیچ میں کچھ کرایہ 3-4 روپیہ اور 5-6 روپے نفع ہے اس کا ہول سیلر کا, بیچ میں 10 کہا جاتا ہے میڈیسن کے کاروبار میں سب سے زیادہ منافع ہے, لیکن جو آپ منافع بتا رہے ہیں 60% منافع, یہ تو دنیا کسی کاروبار میں نہیں, آپ کیلکولیشن غلط کر رہے ہیں, 60% نہیں, تقریباً اس میں جو ہول سیلر اور ریٹیلر کا, فارمر کو تو نفع ہی نہیں ہے, ہم تو سبسڈائز کر رہے ہیں, کی بات بھی نہیں کرتا, میں تو ریٹیلر کی بات جی جی, بیچ میں ہول سیلر کا نفع زیادہ ہے. اچھا, پھر بھی ریٹیلر کو کتنا منافع ملتا ہے؟ منافع فارمر کو چھوڑ دیں, صرف ریٹیلر کی بات, تقریباً 7-8 روپے نفع ہے, 7-8 روپے نفع ہے فی لیٹر میں, اور ہول سیلر کو کیا جا رہا ہے؟ ہول سیلر کو کرایہ اور کچھ 6 روپے اس کا نفع ہے فی لیٹر, 6 روپے اس کا نفع ہے, 8 روپے اس کا نفع ہے, اور یہ کل ملا کے تقریباً آپ کے نے ابھی جو بتائی, لیکن آپ کے شروع میں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ 60 روپے 70 روپے, یہ کچھ الگ آپ نے پیسے بتائے. نہیں, میں نے آپ سے عرض کی کہ جی دودھ کی قیمتیں 30 سے 40 روپے لیٹر فی کم ہو سکتی ہیں اگر ہم ڈیپریسیشن چارجز نکال دیں اور اگر زمینیں فراہم کر دی جائیں, اگر آپ زمینیں فراہم کر دیں گے, زمینیں فراہم کر دی جائیں, ہم اس کی قیمت ادا کریں گے, جی ہم اس کی قیمت ادا کریں گے گورنمنٹ کو. تو عوام جب تک ان کو قیمتیں نہیں ملیں گی, مزید کیٹل منڈی نہیں ملیں گی, آپ کے دودھ کی قیمت کم نہیں ہوگی, ان کو سیکیورٹی چاہیے, ان کی ایویلیویشن کریں گے اور منمانی ہوگی, اور جو قیمت ہے وہ فی لیٹر 200 تک بھی جائے گی. ابھی انہوں نے 20 روپے بڑھائی ہے, آگے انہوں نے کہا کہ ابھی مطلب ابھی مزید آپ نے پریشان ہے کہ 15 روپے اور بڑھے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں زمینیں فراہم کی جائیں, تو جو انویسٹر حضرات ہیں وہ تو زمینیں خود بھی پرچیز کر سکتے ہیں, اور اگر صرف زمینوں تک معاملہ رہے تو وہ بات الگ ہے, لیکن اس وقت جانوروں کی جو ابھی تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تعداد کم ہے, اور جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ, ڈیمانڈ سپلائی کے اصول پہ ہی کوئی دودھ کا ریٹ کا تعین ہو رہا ہے, لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. کراچی کے تقریباً ہر نکڑ پہ, ہر گلی پہ ہمیں ایک نہ ایک دودھ کی دکان ضرور نظر آتی ہے, لیکن اور اس میں دودھ بھی ماشاءاللہ وافر مقدار میں ہوتا ہے. کبھی یہ ہمیں سننے کو نہیں ملا کہ جناب دودھ آج ختم ہو گیا ہے یا آج صرف 3 گھنٹے کے لیے دودھ آئے گا. عوام کہتی پیسے مک گئے, دودھ ختم نہیں ہوا, اور ایسے ہی لگ رہا ہے پیسے مزید مکیں گے, کیونکہ اگر آگے دودھ کی ایسی پرائس مزید بڑھتی جائے گی اور 200 فی لیٹر تک بھی جائے گی, حکومت یہاں پہ کہیں نظر نہیں آ رہی, حکومتی ریٹ یہاں پہ کہیں نظر نہیں آ رہی, کہاں امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. کمشنر ریٹس کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں جب دکانوں میں کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, چاہے وہ دودھ, دہی, انڈے, کچھ بھی ہو, ہمیں کمشنر ریٹ پہ کہیں بھی کوئی چیز بکتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو یہاں پہ لگ رہا ہے ریٹ از مسنگ. کمشنر صاحب کے پاس ہوتی ہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں, وہ ہم نے الحمدللہ مطلب ان کا ذکر ضرور سنا ہے, لیکن وہ نظر نہیں آتی کبھی. چلیں جی, لیٹس سی جناب, بہت شکریہ جی, شاکر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس سی کہ یہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھے اور ذرا تھوڑا کسی اچھے پوائنٹ پہ جا کے ہمیں پتہ چلے کہ جی دودھ کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, چھاپے پڑے ہیں, 1-2 دکانیں سیل ہوئے ہیں, کوئی اس قسم کا معاملہ اگر ہو تو ذرا زیادہ بہتر ہوگا. بات اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو کنزیومر رائٹس بھی نہیں پتہ, یہاں پہ چیزوں کی پرائس بڑھتی چلی جاتی ہے, عوام پریشان ہوتی چلتی ہے. کنزیومر رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے, ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسا مسئلہ جو کہ اکثر خواتین فیس کرتی ہیں, کیونکہ شفاعت ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی شادی پہ جو آپ کا روسی جوڑا ہوتا ہے, اپنا برائڈل جوڑا ہوتا ہے, وہ آرڈر کرتے ہیں ڈیزائنر سے, اس کو آپ ایڈوانس میں اچھی خاصی بھاری رقم دیتے ہیں, اور آپ اس کو بتا دیتے ہیں بھائی کہ 3-4 مہینے بعد میری شادی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی شادی کی ڈیٹس قریب آتی جاتی ہیں, آپ ڈیزائنر سے پوچھتے ہیں ہاں بھی میرے جوڑے کا کیا بن گیا جی, تیار ہو گیا, آپ کا جوڑا ریڈی ہے, بس ریڈی, کل آ گیا. اور کرتے ایسا ہی ہوا ہے خاتون کے ساتھ, جن کی شادی آ گئی پر ان کا جو برائڈل جوڑا ہے وہ نہیں آیا. تو ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے لیا اس پہ ایکشن, اور وہ پہنچ گئے عدالت, اور عدالت میں جا کے انہوں نے جی کر دیا مقدمہ جو ڈیزائنر ہے اس کے خلاف,
اور اب فائنلی عدالت نے اس ڈیزائنر کو, اس دکاندار کو 6 مارچ کو طلب بھی کر لیا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. شفاعت یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں اس کا بھرپور آئیڈیا ہے. جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو سارے بندوبست میرے حوالے تھے. وہ جب ہم جائیں جناب وہ ولیمے کا جوڑا لینے کے لیے تو وہ کہ جی اڈے پہ لگا ہوا ہے. پتہ نہیں کون سے اڈے پہ لگا ہوا ہے. پتہ چلا کہ جی وہ اس نے وہ جو ہے وہ اس کو اس میں ہو رہی ہے خود گوٹے ووٹے لگ رہے ہیں. پھر ہوتے ہوتے جب شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تو تب ہمیں پھر پسوڑی پڑ گئی. ہم نے کہا یار ناؤ دس از سم تھنگ سیریس. اور تب جا کے اللہ کا شکر ہے کہ وہ جوڑا ہمیں ٹائم پہ مل گیا. لیکن جناب بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب نامنظور, اگر آپ نے جوڑا ٹائم پہ نہیں دیا بہت اچھی بات ہے, لیٹس گو ٹو کورٹ. کنزیومر رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہر بندے کو اندازہ ہونا کہ اس کے کچھ رائٹس ہیں. ایڈوکیٹ چودھری عدنان صاحب جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے کہ سر یہ کیا ہوا واقعہ, کیسے پیش آیا, کیوں آپ کو ایسا لگا کہ جی اس بندے کو جو ہے کورٹ میں لے کے جانا چاہیے؟ جی بالکل, اس میں نے بنیادی طور پہ کمپلینٹ انڈر سیکشن 25 آف پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت میں کنزیومر کورٹ میں گیا ہوں. اور اس میں جو دلہن کا بھائی تھا عثمان نامی لڑکا جو کہ میرا کلائنٹ ہے, ریئل بردر ہے دلہن کا, انہوں نے جو ڈیٹ دی ہوئی تھی اپنا زبائش عروسی والوں نے کہ اس ڈیٹ کو آپ کا لہنگا مل جائے گا. لیکن وہ جو کرائیٹیریا انہوں نے دیا تھا اس کرائیٹیریا کے مطابق نہ تو انہوں نے وہ لہنگا ہمیں پرووائڈ کیا, اور 2 ماہ گزرنے کے باوجود تیسرے ماہ جا کے, جب کہ دلہن کی شادی ہو چکی تھی, تیسرے ماہ جا کے ہمیں وہ لہنگا پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ہم نے اس میں تقریباً وہ 66,000 روپیہ جو کہ ایڈوانس میں انہوں نے ایڈوانس پیسوں کی مد میں ہم سے لیے ہوئے تھے, وہ بھی ان کے پاس ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. ذرا مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو دکاندار رسید دیتا ہے, رسید پہ ٹائم لکھتا ہے, اس کی لیگل ویلیو کیا ہے کنزیومر رائٹس کے قانون کے مطابق؟ جی بالکل, اس میں دیکھیں نا جو ریسپٹ دیتا ہے, جی آواز آ رہی ہے آپ کی, جو دکاندار جو ریسپٹ دیتا ہے اس سلسلے میں اگر وہ کرائیٹیریا جو دیتا ہے اس کے مطابق نہیں کرتا تو ہمارا رائٹ ہے, ایک عام صارف جو ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کنزیومر کورٹ میں جا کے ایک کیس دائر کر سکتا ہے تھرو کونسل, تھرو وکیل, جو بھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس کی ویلیو کے حساب سے اگر بات کی جائے تو اس میں ڈیمیجز کلیم کیے جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے اپنے پٹیشن میں جو آنریبل کورٹ نے ایڈمٹ کی ہے, اس پٹیشن میں آنریبل کورٹ نے 2 بار طلبی کی ہے رسپونڈنٹ کی, جو کہ ابھی تک ان پرسن حاضر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس میں نیکسٹ طلبی کے بعد جو ہے 6 مارچ کے لیے آنریبل کورٹ نے فکس کیا ہے. ان کیس اگر وہ نہیں آتے تو وہ جو ڈیمیجز میں نے کلیم کیا ہے وہ آنریبل کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ 10 لاکھ میں سے آیا ان کو 10 لاکھ ہی دیا جائے یا کہ اس سے کم دیے جائیں, لیکن وہ آنریبل کورٹ ہی ڈٹرمن کرے. وہ آنریبل کورٹ بتائے گی. لیکن مجھے بتائیں جی سیکشن 25 کے تحت کیا سزا ہوتی ہے ویسے, زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں سیکشن جو 25 ہے یہ تو بنیادی طور پہ ہم تو اس کے تحت آئے ہیں نا, یہ کمپلینٹ فائل کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ڈیل کرتا ہے نا سیکشن پینلٹیز کے لحاظ سے وہ سیکشن 32 ہے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کا. اس کے تحت جو ہے ہم جاتے ہیں, وہ آنریبل کورٹ جو ہے اپنا پینلٹی ڈٹرمن کرتی ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے 2 ایئر ہوتی ہے ود فائن ہوتا ہے, یا دونوں صورتیں ہوتی ہیں, سزا بھی ہوتی ہے اور فائن بھی ہوتی ہے. اور سب سے جو اہم بات میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو ڈیمیجز ہم نے کلیم کیے ہوتے ہیں اس کا بھی آنریبل کورٹ جو ہے اپنی ججمنٹ میں اس کا بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے اور ڈٹرمن کرتی ہے کہ اتنے پیسے ان کو دینے ہیں آپ نے. صحیح چوہدری صاحب بہت شکریہ. اب پتہ چل چکا ہے جناب کہ سیکشن 5 کے تھرو آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا کوئی فراڈ ہو, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے لاہور میں بڑے بڑے ڈیزائنرز آپ کے ساتھ, آپ کو پتا ہے کیا کر جاتے ہیں. لاہور کے اگر ہم پاکستان کی بات بھی کریں, یہ کرتے ہیں ڈیزائنرز کہ جی آپ کی شادی والے دن آپ کا جوڑا آتا ہی نہیں, اور خاتون کا تو شادی کے بھی 3رے مہینے, یعنی کہ شادی ہو چکی تھی 3 مہینے بعد شادی کا جوڑا آیا تو جناب 2 سال کی سزا ہے, فائن علیحدہ ہوگا, اور جو آپ ڈیمیجز کلیم کریں گے وہ علیحدہ. یار وہ میں سوچ رہا ہوں یہ تصویروں اور ویڈیو والے جو سال لٹکا کے رکھتے ہیں وہ تو بیچارے خوار ہو جائیں گے. بھائی کام تیز کرو, سیکشن 25 میں بڑا سین بیڈ ہے, کام تیز کرے فوراً سے. اینی وے آپ کو اب لے کے چلتے ہیں کسی سرسوں کے کھیت میں, ایک پیلا پیلا سرسوں کا کھیت, فروری کا مہینہ ویسے بھی ہر جگہ پہ آپ کو پنجاب میں آپ جدھر جائے پیلے ہی پیلے لمبے لمبے کھیت, وہ دیکھیں جیسے یہ ہے آپ کو فوراً نظر آئے گا کہ جناب ابرار الحق کا گانا شوٹ ہو رہا ہے, جٹ چڑھیا کچہری, اور یہاں پہ کہیں آپ کو وینا ملک دائیں بائیں نظر آئیں گی. نہیں جناب, اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی. سرسوں کے
खुराकी फवायद की बात Exactly, मतलब आपको जहाँ- हर जगह वीना मलिक याद आ जाए। Why would I? मैं वीना मलिक को क्यों याद करूंगी, नाम आपने लिया है। लेकिन शफात जब मतलब आंखों के लिए तो अच्छा ये व्यू ही आपको बड़ा सुकून देता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सरसों के एग्जैक्टली फवायद क्या हैं, चाहे वो सरसों का साग हो जो कि हम सर्दियों में बड़े मजे लेके खाते हैं, या सरसों का तेल हो, या फिर सरसों के बीज हो, इनका इस्तेमाल हमारी सेहत को कितना निखार सकती है, कितना बेहतर कर सकती है, और इसमें क्या कुछ मौजूद होता है बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस मारूफ हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक वालेकुम हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये मुझे बताएं कि हम सरसों का साग, क्योंकि सर्दियां भी हैं, सरसों के साग का सीजन भी है, हम तो साग से वाकिफ हैं और हम सरसों के तेल से वाकिफ जो कि हम सरों पे लगाते हैं। सरसों के बीज के क्या फवायद हैं? और लोग तो सरसों के साग में खाना भी बनाते हैं। जी बिल्कुल बनाना चाहिए। वैसे अब जो FDA ने सरसों के तेल में खाना वगैरह बनाने, मतलब उन्होंने उससे कहा है कि इसमें पका नहीं सकते, और वो कहते हैं इसका एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है उन्होंने ये बात इसलिए की हो कि वो लोग ड्रेसिंग वगैरह में जो इस्तेमाल करते थे, और हमारे यहाँ हमेशा सरसों को गर्म करके जैसे उसमें अचार डाला जाता है, सरसों के तेल के बगैर कोई अचार नहीं बनता, और सरसों के तेल में अगर पकवान बनाए, जैसे खाना बनाया जाए, तो उसकी इफादियत और वो ख़राब थोड़ी देर में होता है, क्योंकि सरसों में एक चीज़ ये है कि ये चीज़ों को ख़राब होने से रोकती भी है। ठीक है। और बीजों से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हमारे एक्जिमा, एलर्जीज सब के लिए बेहतरीन है कि आप 1/4 टीस्पून सरसों का जो बीज है दिन में 2 बार खा लें, तो उससे स्लो एंड ग्रेजुअली आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे हमारे हड्डियों, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको भी बेनिफिशियल होता है अगर सरसों के बीज इस्तेमाल किया जाए। और सरसों के बीज को अगर हम पीस कर अगर आपको एक्जिमा वगैरह है उसमें कोई कैरियर ऑयल जैसे जैतून के तेल के साथ मिला के लगाया जाए, तो आपके स्किन डिजीज़ भी जो है मिनिमाइज हो जाते हैं, ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। जिस घर में बच्चा हो और उस घर में सरसों का तेल ना हो, हमारे पूरे बड़े में हर जगह मालिश के लिए बेहतरीन है कि सरसों के तेल से बच्चों की मालिश की जाती है। सरसों के तेल में जो है अजवाइन और लहसुन जलाकर उससे भी बच्चों के सीने जैसे ठंड से बचाने के लिए सदियों से ये इस्तेमाल हो रहा है। अगर दांतों का पीलापन है और अगर आपके दांतों में कोई भी अमराज है, जैसे हमने बताया कि जो आपके स्किन एलर्जीज़ के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा है, तो आप बैंगन के जो छिलके, जो हम बैंगन के छिलके उतार देते हैं, फेंक देते हैं ना एग प्लांट के, अगर उसको बिल्कुल उसका ऐश बना के सरसों के तेल में हल्के से नमक के साथ लगाएं। मैं तो समझा आप भुर्ते की टेक्निक बता रही हूँ। नहीं बिल्कुल मैं समझा बस ये आप ऐश बनाएं और भुर्ता बनाएं और खा जाए, हाँ, दांत देखा जाएगा। देखिए भुर्ता बनाते हैं ना, तो उसमें भी हम उसका ऊपर का छिलका हटा देते हैं। तो जो हटा देते हैं छिलका, उसकी जो राख है वो अगर सरसों के तेल में नमक के साथ मिल जाए तो आपके दांतों को जो टीथ वाइटनिंग के लिए बेहतरीन है। अगर जो सिगरेट पीते हैं या पान गुटखा, ये खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके खाने से जो दांतों पे धब्बे पड़ जाते हैं, स्टेन आ जाते हैं, तो आप ये करके देखें। कॉफी के स्टेन, कॉफी के स्टेन भी आते हैं, कैफीन के भी आते हैं, जो रिमूव हो जाते हैं। जी फर्क पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं कोई मैजिक होगा कि आज आप करो और फौरन मिरर में खड़े हो जाओ कि देखो सब कुछ हो गया। लेकिन ये अगर आप इसको ही जैसे इसके ऐश को सरसों के उसके साथ किसी अपने पेस्ट में मिलाकर भी आप करो ना, क्योंकि लोगों को होता है कि स्मेल आएगी, ये होगा, तो आप टूथपेस्ट में उसको मिक्स कर लो, आप करके देखिए। आजमाए हुए टोटके हैं या रेमेडीज हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल सवाल देखिए, बचपन में मतलब सर में सरसों के तेल की मालिश बड़ी करवाई हुई, और अभी जैसे आपने बोला कि और सरसों का तेल हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने अक्सर देखा कि गांव देहात की जो खवातीन होती हैं जिनकी स्किन बड़ी क्लियर होती है, कोई रिंकल नहीं होता, कोई पिगमेंटेशन की स्किन में नहीं होती, एक बार मैंने खातून से पूछा आप मुंह पे क्या लगाती हैं, तो कहती है सरसों का तेल लगाती हूँ। तो ये सरसों का तेल मतलब हमने तो कभी सोचा भी नहीं हुआ, आप जरा सा सरसों का तेल लगाते हो माथे पे या तो फौरन साफ करते हैं तेल मुंह पे लग गया है, तो और उनके लिए इतना बेहतरीन और कारगर साबित होता है। बिल्कुल करना क्या चाहिए कि सरसों का तेल दिन में नहीं लगाना चाहिए। अगर सरसों का तेल लगाकर धूप में बैठेंगे आपकी स्किन टैन होगी। और अगर आप सरसों के तेल में नींबू निचोड़कर उसको अच्छी तरीके से बीट करके रात को पहले चेहरा धो लें, और चेहरे पे थोड़ा सा पानी होना चाहिए ताकि आपकी ऑयल की एब्जॉर्प्शन जो है ना अच्छी हो। फिर और पोर्शन भी दोनों एक जितना रखना चाहिए। अगर 1 टेबल स्पून आपने सरसों का तेल रखा है तो 1 ही चम्मच आप नींबू का रस रखें, उसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जैसे फेशियल मूवमेंट के तौर पे हम लगाएं और आप सो जाएं, और आप देखें सुबह आपकी स्किन
बहुत अच्छी हो जाएगी, ओके नरिश हो जाएगी। और Anti-aging सरसों है के इसका तेल मतलब। को अगर आपने उसके एक्जिमा बेनिफिट की बात की, जी 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 स्किन इश्यूज में बहुत सारे इश्यूज आते हैं और हम जी। बचपन से भी जब भी जरा जी। ड्राइनेस आती थी तो अम्मी जो है ना वो पकड़ के तेल लगा देती थी। नमक मिला के लगाया Yes, जाता था exactly, पहले, नमक exactly, मिलाकर और वो जी। बड़ा अजीब सा लगता था, जलन पूरा होती दिन थी, एक वो जो हाँ। है ना एक अजीब सी कैफियत होती थी कि यार सरसों को तेल लगा। ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्किन के लिए ठीक है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए Psoriasis वगैरह ये जो- सोराइसिस, एक्जिमा, अगर एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो इन सब के लिए सरसों बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जो सरसों का तेल बनाते हैं उनसे गुजारिश करूंगी उसमें दूसरी चीज़ें प्लीज़ ना मिलाएं। मसलन मसलन है Mobil oil? कुछ जो सरसों के तेल में मिक्स या कुकिंग ऑयल डाल देते हैं उसका वेट बढ़ाने के लिए, इस तरह। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इससे जो है ना लोगों को ऐसा लगता है कि इसके ऑर्गेनिक बेनिफिट्स नहीं। चीजों का दौर है, ऑर्गेनिक जमाना है। लोगों ने आजकल रिफाइंड सरसों का तेल जो है वो दरियाफ्त किया है, वो बिल्कुल शीशे की तरह होता है। ये कहने जी डबल रिफाइंड है, इसका कोई फायदा है? मैं आपको बताऊं कि हम जितने भी मॉडिफिकेशन पे जाएंगे, अपने रूट्स को छोड़ देंगे, तो इतना कहीं ना कहीं हम नुकसान उठाएंगे। कहीं ना तो कहीं नुकसान हाँ, तो उठाएंगे। आपने अपने रूट्स को नहीं छोड़ना। जो चीज़ जैसी अल्लाह ने दी है वैसे ही जैसी और वो चीज हमारी अल्लाह ने सेहत दी है वैसी ही इस्तेमाल करें। बहुत जी, बिल्किस साहब हमारे साथ मौजूद थी। आगे कहाँ चले मदिया? आगे हम जा रहे हैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में खुश आमदीद जनाब। आज के दिन में आपके लिए मजीद खबरें लेके आए हैं और बहुत अच्छी चीज़ें बतानी है। बेशतर इसके कि आप शो के आगाज़ में ये समझे कि जनाब ये पता नहीं आज दो कौन नए लोग बैठे हैं, तो आपकी याददाश्त के लिए बताता चलूँ, मैं हूं शफात अली और मेरे साथ मौजूद है मदीहा नकवी। जनाब आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, स्पेसिफिकली शफात, क्योंकि 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो इन दोनों ने फैसला किया था जी हम ओपन बैलेटिंग के हवाले से काम करेंगे। बिल्कुल 2015 में भी सेनेट में एक कमेटी बनाएगी जी कि हम किस तरीके से इन वोटों की खरीदो फरोख्त को रोकें और ट्रांसपेरेंसी जो है सेनेट के इलेक्शन में वो कैसे लाई जाए उस हवाले से बात करेंगे। नहीं मानेगी जरा, पूरी होल कमेटी बनाएगी। होल कमेटी में भी बात कीजिए कि हम किस तरीके से ओपन बैलेटिंग पे काम करने के, लेकिन हम देखा कि 2018 में किस तरीके से जो है वोटों की फिर गिनती ऊपर नीचे हुई है। बहुत सारी सियासी जमातों ने इस वजह से सफर भी किया। तो आज हम बात करेंगे भाई, मतलब जब आप भी ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे थे और मौजूदा हुकूमत भी ओपन बैलेटिंग की बात करिए, फिर झगड़ा किस चीज का? की पॉइंट ऑपोजिशन कहती है जनाब अगर हुकूमत ओपन बैलेटिंग की बात करती है तो पहले ये बताए कि जब चेयरमैन सेनेट पे नो कॉन्फिडेंस आया था तो उस वक्त हुकूमत के पास 14 सेनेटर कम थे। वो 14 सेनेटर्स कहाँ से आए? पहले तो यहाँ से बात शुरू करें। हुकूमत कहती है ऑपोजिशन की नीयत खराब है, इसलिए ये लोग ओपन बैलेटिंग की मुखालफत करें। साथ ही जनाब दो मजीद तरमीम भी आई हैं जिनके बारे से हम गुज़िश्ता प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं। कल 26वीं तरमीम आइन की जो है वो असम्बली में पेश की, फरोग नसीम साहब ने पेश की, और उसके बाद असम्बली में जो कुछ हुआ वो ऐवान मछली बाजार बना रहा, वो हम उसकी तरफ बाद में आते हैं। लेकिन जो दो नई तरमीम है, एक ये कि जनाब एक तो बैलेट ओपन होगा, दूसरा कोई भी जो गैर मुल्की है वो गैर मुल्की शहरियत रखते हुए सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो कर सकेगा, लेकिन अगर वो इलेक्शन जीत जाता है तो उसे अपनी शहरियत तर्क करनी पड़ेगी। और तीसरी आम चीज कि बैलेट आइडेंटिफाई होगा, जो भी बैलेट है वो उसकी शनाख्त हो सकेगी कि वो बैलेट किसका है, वो किसने डाला है। तो ये एक बड़ा, यानी बैलेट के ऊपर नाम लिखा होगा, इन शॉर्ट ये तीनों चीजें ऐसी हैं। हमसाया मुल्क में ये कानून राइज है तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? और अच्छी बात है ना, ये इससे तो तमाम तरफ पार्टियां फायदे में रहेंगी। इसी वाले से सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे पहले। ओपन बैलेट इलेक्शन पर नया महाज खुल गया। कौमी असेंबली में 26वीं आईनी तरमीम का बिल क्या आया? अवामी नुमाइंदे आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गए। ऐवान में शोर शराबा, तल्ख कलामी, सीटियां बज गईं। सुप्रीम कोर्ट का बीआरटी मंसूबे से मुतालिक अहम फैसला, तहकीकात नैब के सुपुर्द करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम, मंसूबे की लागत में इजाफे और गैर मयारी तामीरात की रिपोर्ट तलब। जनाब सबसे पहले बात करते हैं सेनेट इलेक्शंस की। उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत थी, आईनी तरमीम कल पेश की गई। 26वीं आईनी तरमीम कल फ्लोर ऑफ द हाउस में पेश की गई। फरोग नसीम वज़ीर कानून ने ये जो तरमीम पेश की, तो जनाब उसके फौरन बाद क्या हुआ मदिया, वो हम अपनी आवाम को कैसे बताएं?
بالکل شفاعت, اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جماعتیں جو کہ پہلے اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جب یہ معاملہ پہلے کیونکہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا, اس کے بعد یہ معاملہ موجودہ حکومت لے گئی پارلیمنٹ میں, اور جب پارلیمنٹ میں یہ مدعا اٹھایا گیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتیں جو کہ ایک ٹائم میں جب مذاق جمہوریت بھی جب سائن کیا گیا تھا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان, تو وہ ان اصلاحات میں متفق تھیں کہ ہم نے اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے تاکہ یہ جو سینٹ کے الیکشن سے پہلے خرید و فروخت ہوتی ہے, جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, اس کا خاتمہ ہو سکے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ سینٹ میں ووٹوں کی خرید و فروخت وہ روکنا چاہتے ہیں, اور خواہش ہے کہ ان انتخابات میں, کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو انڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں, ان انتخابات میں پیسہ نہ چلے. لیکن جب گزشتہ روز سینٹ انتخابات کو اوپن بیلٹ کروانے کے لیے آئینی ترمیم پیش کی گئی تو اپوزیشن کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہوئی, شور شرابہ ہوا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی کوئی مچھلی بازار بن گیا ہے. بالکل جی, بڑا شور شرابہ, بل کی کاپیاں پھاڑی گئیں, کاپیاں اچھالی گئیں, موبائل سے ویڈیوز بنائی گئیں, نعرے لگائے گئے, اور وہ ویڈیوز بنا کے جناب مختلف میڈیا ہاؤسز پہ چلائی بھی گئی. بڑی عجیب و غریب بات ہے. ان حالات میں حکومت کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ پیش تو ہوا, بھونچال آیا, اس میں خوب شور غل ہوتا رہا, ڈیسک بجائے گئی. یہ وہ ویڈیوز ہیں جناب جو کہ کل صاف ہوتا ہے, obviously یہ کوئی ٹی وی کا کیمرہ تو ہے نہیں, یہ تو کوئی آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ ہے جو یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور جس طرح سے اسپیکر صاحب کے ڈیسک کے پاس جا کے بل کی کاپیاں پھاڑ کے اچھالی جا رہی ہیں. عجیب و غریب مناظر ہے جناب. یہ مقننہ ہے, قانون بنانے کی فیکٹری ہے جس کا بڑا احترام ہے. شیریں مزاری نے الزام لگایا کہ پی پی رکن اسمبلی آغا رفیع اللہ نے ہماری کسی خاتون رکن کو گالیاں دی ہیں. پرویز اشرف نے دعویٰ کیا کہ شیریں مزاری نے رفیع اللہ کو ایسا اشارہ کیا کہ بیان نہیں کر سکتا. رفیع اللہ نے ہماری عورت کو گالیاں لی ہے, آپ کے منہ میں کاغذ پھینکے. لیڈی منسٹر سے یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ہمارے ایک آنریبل ممبر رفیع اللہ صاحب کو کس انداز سے انہوں نے اشارہ دیا, اپنے زبان پر بھی نہیں لا سکتے. میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا, میں تو آپ کو یوں کہہ رہی تھی کہ میری بات سنیں. آج تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. آپ اور ہم ایک پیج پر ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ بل پر اپوزیشن کو شدید تحفظات ہیں. وفاقی وزیر فروغ نسیم یہ کہتے ہیں کہ بل سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کا ہے. تو جناب یہ فروغ نسیم صاحب نے کل بل پیش کیا, اور جب نواز شریف صاحب اور اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ دونوں جو تھے جلا وطنی, تو اس وقت ایک دونوں پارٹیز نے مل کے ایک معاہدہ کیا تھا which was called چارٹر آف ڈیموکریسی, میثاق جمہوریت. اس میثاق جمہوریت کے تحت ایک شق یہ بھی رکھی گئی تھی کہ جو دونوں پارٹی سینٹ کے انتخابات ہیں ان کو اوپن بیلٹنگ کے ذریعے رکھیں گی. شفاعت اس ٹائم بھی بولا تھا, اور ابھی کچھ عرصہ پہلے خود سابق صدر آصف زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کو چیئرمین بھی ہے, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ بولا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم اوپن بیلٹنگ کرائیں گے. لیکن جب اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی تو پھر آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کس قدر ہنگامہ کیا. ویسے آپ کو بھی سنوا دیتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے کہا کیا تھا. میں کوئی ترمیم کریں گے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہ ہو, تو آپ جب انشاءاللہ جب اللہ نے اتنی کامیابی دی تو ضرور کریں گے. زرداری صاحب 2019 میں کہہ رہے تھے جی انشاءاللہ ضرور کریں گے, اوپن بیلٹنگ ضرور کریں گے. مراد سعید نے کل تقریر کی جناب, اور ان کی تقریر کے دوران بھی ہنگامہ ہوتا رہا, اور کل یہ پوری کاروائی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب ذرا اس پہ پہلے حکومتی پارٹی کا موقف جان لیتے ہیں. تحریک انصاف سے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ وقت دینے کے لیے. سینٹ الیکشن میں جو اوپن بیلٹ سے کرانے کی تجویز ہے اس پہ اپوزیشن راضی نہیں ہے, اور حکومت جو ہے وہ مصر ہے کہ جی ان کے پاس ایک مورل کرنسی ہے اس بل کو لانے کی. کیسے نمٹیں گے ان حالات سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ دکھانا چاہوں گی, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے میرے پاس, وہ مکمکا جو نواز شریف نے اور بے نظیر صاحبہ نے کیا تھا, اور یہ لکھتا ہے اس کی جو شق نمبر 23 ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ راضی تھے سینٹ الیکشن اسی طرح سے کروانے کے لیے جس طرح آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. مطلب ہمیں تو اس شور و غوغے کی سمجھ نہیں آ رہی. لاسٹ ٹائم جب سینٹ الیکشن ہوا ساری پارٹیز کو اس پر اعتراض تھا. اس دفعہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا ساری پارٹیز نے اس پر شور مچایا. ابھی بھی پی ایم ایل این ووٹ کو عزت دینے کا آپ کو پتہ ہے
کہ سلوگن لے کر چلی ہوئی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی سو کالڈ یہ کہتی ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, ہمیں ریفارمز کرنی چاہیے. تو یہ تو پہلا سٹیپ ہے کہ ہم ریفارمز کی طرف جا سکتے ہیں, ہم شفافیت کی طرف جا سکتے ہیں, بٹ یہ اس سے ریلکٹنٹ ہے. دیکھیں یہ قوم کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ لوگ ان کے جسے کہنا, میں یہ کہنا چاہوں گی منافق چہرے ہیں کہ یہ پورٹرے کچھ کرتے ہیں, سٹیٹمنٹس کچھ دیتے ہیں, لیکن یہ ووٹ کو عزت دے کا نعرہ اب یہ نوٹوں کو عزت دے کر اور ضمیر کو عزت دے کر اور سینٹ کی بولی لگا کر ختم ہو رہا ہے, اور سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا بالکل صحیح کی کہ پہلے یہی جماعتیں جو تھیں اوپن بیلٹنگ کے حق میں تھی, لیکن جب حکومت پاکستان یہ اب موقف اور یہ مدعا لے کے پارلیمنٹ میں آ گئی تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی. اچھا ابھی بھی ہم پی ڈی ایم کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی تو بات کری کہ جی بھرپور طریقے سے ہم اس میں حصہ لیں گے, لیکن مسلم لیگ نون کا کہیں نہ کہیں موقف ہے نہیں جی ہم ابھی استعفے دیں گے اور سارے مل کے استعفے دیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر سینٹ الیکشن میں پی ڈی ایم مل کے لڑنے پہ راضی ہو جاتی ہے اور یہ مل کے لڑتے ہیں تو حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اپوزیشن جماعتوں کا جو ڈرامہ ہے وہ جسے کہتے ہیں نا, ان کی ہنڈیا تو سر بازار پھوٹ چکی ہے. اور جو پی ڈی ایم جس طرح کے وہ جو مریم بی بی نے نعرہ لگایا تھا نا, آہا ہا 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہوگی, تو ساری دنیا نے دیکھ لیے کہ پی ڈی ایم میں تو آلریڈی لڑائی ہو چکی ہے. کل کے جو بیانات ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے, احسن اقبال صاحب کے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ بلاول صاحب بیکاز یہ کیا چاہتے ہیں مریم صاحبہ اور سو کالڈ ماں لانا صاحب, جن کو ماں لانا صاحب ہمیں کہنا چاہیے, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ہے بیکاز وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے تو وہ سارے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی چونکہ سندھ حکومت آن کرتے ہیں اس لیے وہ اس سسٹم کا حصہ چاہتے ہیں. اور لیگل وے بھی یہ ہے, دیکھیں ہم صرف کہتے ہیں 31 تاریخ گزر گئی, پہلے 31 دسمبر گزر گیا جب انہوں نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دینی تھی, پھر 31 جنوری گزر گئی, ہم تو ان کے استعفوں کا ویٹ کریں, ہم تو ان کے لانگ مارچ کا ویٹ کریں. اب وہی ریورس وہ جو یو ٹرن کہتے ہیں, جس یو ٹرن کا یہ پی ٹی آئی کو کہتے تھے, آج وہ یو ٹرن لے کر یہ دوبارہ سے وہی جو کہتے تھے کہ ہم سینٹ الیکشن میں نہیں حصہ لیں گے, خان صاحب کی حکومت جنوری سے پہلے چلی گئی تو جنوری چلا گیا, لیکن حکومت بھی یہی ہے, پرائم منسٹر بھی یہی ہے. تو یہی پی ڈی ایم کے ساتھ ہونے والا ہے. اور آگے بھی میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتی ہوں اور وہ میں بار بار یہاں بھی استعمال کروں گی کہ پی ڈی ایم کا جسے کہہ لیں فاتحہ پڑھ لیں, اب تو ہمیں اس کے چاول کھانے چاہیے. بہت بہت عالیہ حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں تحریک انصاف سے. پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فیصل بھائی وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا سر, یہ سینٹ میں جو اوپن بیلٹ کے حوالے سے جو آئینی ترمیم کل پیش کی گئی, اس حوالے سے بڑا شور شرابہ مچا, اپوزیشن کیوں مخالفت کر رہی ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے دن سے یہ کلیئر ہے کہ ہم یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ حکومت اس چیز میں سنجیدہ نہیں ہے. پہلے اگر آپ دیکھیں کہ ان کے چند مہینے پہلے, غالباً سال پہلے, ان کے 2 وزراء نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم اس قسم کا کام کرنے والے کہ اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈ یا جو بھی تجویز تھی, اس کے بعد غائب ہو گئے. آج جب آپ دیکھیں کہ جب الیکشن میں چند دن رہ رہے ہیں اور الیکشن شیڈول آنے والا ہے, جو آج ہمیں پتہ چلا کہ 10-11 تاریخ کو آنے والا ہے, اب حکومت کو خیال ہے کہ جی ہمیں تو جو ہے اوپن بیلٹ یا جو بھی کہیں اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہ کریں. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا اور جب 14 ممبرز انہوں نے خریدے اور ان کو فلور کراسنگ کرائی, ان کو مجبور کرایا, اور جب وہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی, جس طریقے سے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, جس طریقے سے ناچ گانا کر رہے تھے کہ ہماری تحریک جو ہے عدم اعتماد کی ناکام ہو چکی ہے, آج جب ان پہ وقت آیا تو آپ دیکھیں کس طرح کے یہ چیخ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں جو وزیر اعظم اپوزیشن میں رہ کے عمران خان صاحب کہتا تھا خاقان عباسی 5 کروڑ روپے رشوت دے رہا ہے, یہ ایکسچیکر کے پیسے ہیں, یہ میں نے اس کو کیوں دے رہا ہے. آج وہی عمران خان صاحب 50 کروڑ روپے کے اس نے اعلان کیے ہیں کہ میں اپنے پارلیمنٹیرینس کو دوں گا. میں چیف الیکشن کمشنر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را جاگے اس ملک پہ رحم کریں. آپ ہمیشہ سوئے رہتے ہیں, آپ جب سب پانی سر سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد آپ ایکشن لیتے ہیں. آج وزیر اعظم جو ہے ہاؤس اسٹڈی میں ملوث ہے, وہ اپنے پارلیمنٹیرینس کو 50 کروڑ روپے پہ خرید رہے تاکہ وہ جو ہے ان کو جو ہے سینٹ کے اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دلوا سکیں. تو یہ بتائیں کہ اگر یہ پیسے اگر وہ ویکسین پہ خرچ کرتے, ہماری قوم کو, ہماری عوام کو اگر یہ ویکسینیشن کرا دیتے تو یہ اس سے کافی بہتر تھا بنسبت اپنے اس کے استبل سے اپنے گھوڑے خرید. فیصل صاحب یہ بتائے گا کہ کل جو پارلیمنٹ میں ہوا وہ چیزیں پارلیمنٹ میں ہونی نہیں چاہیے تھی, وہ مہذب معاشرے کا کہیں سے بھی وہ ڈپکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. جس طرح سے پارلیمنٹ میں کل شور شرابہ ہوا, گالیاں تک دی گئیں, اور شیری مظاہر صاحب نے تو الزام لگایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی رفیع اللہ نے خاتون رکن کو گالیاں دی ہیں. ہم نے بعد میں دیکھا کہ رفیع اللہ صاحب نے کل اے وائی نیوز سے گفتگو بھی کی کہ اگر ایسا کوئی ثابت ہو جاتا تو وہ ہمارے چینل پہ آ کے معافی مانگیں گے, لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو آپ پارٹی کے لیول پہ کیا ایکشن لیں گے اس حوالے سے؟
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अखलाकियात और बिल्कियात में बिलीव करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी, आप देखें कि इनके जो वज़रा हैं जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस तरीके से वो बातें करते हैं, जिस तरीके से वो लकबात लोगों को देते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म से लेके उनके मेंबरान तक कुछ तो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन आप इनकी ब्रिगेड देखें, जिस तरीके से ये लोग कैरेक्टर असैसिनेशन लोगों की करते हैं। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी कैंडिडेट ने ऐसे की, और माजी में अगर किसी ने की है उसको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। लेकिन क्या इमरान खान साहब ने अपने लोगों को समझाया, तरगीब दी? ये तो ये तरगीब करते हैं अपने जो इनके स्पोक्समैन की मीटिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा गालियाँ निकालता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों की बेइज्जती करता है, उसको जाके ये लोग हार पहनाते हैं, उसको ये क्लैपिंग करते हैं। ये तरगीब, ये चीज़ें ये पीटीआई में है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अजहर सदीक एडवोकेट साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, मारूफ कानूनदान है। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा, एक तरफ अपोजिशन कह रही है कि वो 14 सेनेटर्स कहाँ से आए जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन की बेंचों पे होते हुए हुकूमत के मौक़िफ़ का साथ दिया। हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है ओपन बैलेटिंग की मुखालफत करने का। आपको क्या लगता है किसके मौक़िफ़ में दम है? बहुत शुक्रिया शफात। मैं सुन रहा था अभी फैसल करीम कुंडी साहब को, तो तारीख के झरोखे में जब गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ मिल के सेनेट के अंदर, बलूचिस्तान वाला आपको वाकया याद होगा, और सेनेट में सलीम मांडी वाला बाकायदा डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। आज वो कह रहे हैं कि थोड़ा कड़वा और थोड़ा मीठा हाफ हाफ थू थू की बातें हो रही हैं, तकलीफ हो रही है इस बात की। सवाल बड़ा सिंपल सा, वेरी सिंपल इशू है कि ट्रांसपेरेंसी हम चाहते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ओपन बैलेट में प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है? ओपन बैलेट हर एक को नंगा कर देगा, हर एक की पोजीशन सामने ले आएगा। ओपन बैलेट के शो ऑफ हैंड से वोट तो हो नहीं सकते सेनेट में, क्योंकि प्रोपोर्शनेट वोट होने हैं, नुमाइंदगी के कॉन्टेक्स्ट में वोट होने हैं, जो कि छोटी असेंबली की सीटों के मुताबिक ट्रांसफरेबल वोट है, जाहिर है वो वोट आगे भी जाके ट्रांसफर होगा। बात दुरुस्त है। देखिए ना, यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है। अभी इस चीज को सामने रखकर देखें, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर शिक नंबर 23 पढ़ ले, शिक नंबर 23 बड़ी क्लियर है इस हवाले से। मैंने अगर मैं ये पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, टू प्रिवेंट करप्शन and floor crossing, all votes for the Senate and indirect seats will be by an open identifiable ballot. Those violating the party discipline in the poll shall stand disqualified by a letter from the parliamentary party leader to the concerned speaker or the chairman Senate with a copy to the election. बिल्कुल सही बात है जी, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे साहब ये बताइए, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने ओपन बैलेटिंग के वाले से बात की है, अगर हमसाया मुल्क में देखा जाए तो वहाँ पे भी ओपन बैलेटिंग राइज है, वहाँ पर करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कानून क्यों नहीं नाफिज हो सकता? क्योंकि ये तो एक तरीके से अगर देखा जाए जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, और यही पार्टियां जो कि डेमोक्रेसी की इतनी बड़ी दावेदार हैं, ये इनको बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि अगर यहाँ पे ओपन बैलेटिंग हो जाए ताकि वो एमपीए जो कि सूबाई असेंबली में बैठा हुआ है वो एक तरह से जवाब दे भी अपनी पार्टी को कि उन्होंने किसको वोट दिया है। तो इसमें हर्जी क्या है? इसमें जमहूरियत को क्या खतरा हो सकता है? देखिए, ये जमहूरियत के खतरा का इशू नहीं है। एवरीबडी नोज कि दो बड़ी सियासी जमातें जो इतने अरसे से पार्टी में चली आ रही हैं और खरीदो फरोख्त के हवाले से छांगा मांगा की सियासत ले लें, बाकी ले लें, उनके पास पैसा मौजूद है, उन्हें पता है, उन्हें इस वक्त फिक्र इस बात की नहीं है। वो कहते फिर रहे हैं कि पीटीआई के कुछ वोटर जो है ना वो उनसे राब्ते में है, तो दे आर एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इस वक्त सेनेट में मौजूदा गवर्नमेंट की नुमाइंदगी ज्यादा हो जानी है, तो उनकी कोशिश है किसी ना किसी से रोका जा सके। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर वैसे देखें कि पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से ये कहा गया कि उन्होंने कोशिश नहीं की है, सबसे पहले वो रेफरेंस लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट में 186 के हवाले से, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के हवाले से, और इंडियन जैसे आपने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा वाज़ेह तौर पर इसको ओपन बैलेट के जरिए किया गया है। और तारीखी बात है, हमारा हमसाया मुल्क और उससे करप्शन खत्म होगी। यानी आज हम और आपको याद हो कई ऐसे नाम आज भी मौजूद हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करें, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कि जिनके अपने वोट कोई थे नहीं थे, लेकिन वो वकायदा सेनेटर मुंतखब होकर आ गए। बड़ी क्रूशियल बात है, ये बड़ी क्रूशियल बात की आपने जरा साहब। एक चीज और, अपोजिशन ने कल बिल की मुखालफत की, और बिल में उनका खास तौर पे जो तरमीम आई थी वो सेकंड जो उस बिल उस तरमीम के हक में जो दूसरी शिक है वो उसकी बड़ी मुखालफत कर रहे थे कि कोई भी जो डुअल नेशनल है वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, लेकिन अगर वो जीत गया तो उसे अपनी जो साबका शहरियत है, वो जो सेकंड नेशनैलिटी है, वो तर्क करनी पड़ेगी। अपोजिशन एतराज करी जी किसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है,
کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون لایا جا رہا ہے. کس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے حکومت؟ دیکھیں بڑی تکلیف اور دقت ہوتی ہے اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ان کی بیسز دیکھیں, ہسٹری اگر دیکھیں, آرٹیکل 63(1)(c) کے اندر ہے کہ آپ کو الیکشن لڑنے سے پہلے سٹیزنشپ چھوڑنی ہوتی ہے. صحیح. اور ہمارے اوورسیز کے حوالے سے ایک معاملہ چلا آ رہا ہے کہ ان کو موقع نہیں مل رہا, ان کو نمائندگی کا پارلیمنٹ کے حوالے سے. اور یہ دیکھیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر حلف کی خلاف ورزی کے حوالے سے بات ہو تو وہ باقاعدہ پہلے آپ کو شہریت چھوڑنی پڑے گی. اس میں تو میں نہیں سمجھتا کوئی اعتراض ہے. کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے 63(1)(c) کے اندر, الیکشن لڑتے ہیں, الیکشن جیت جاتے ہیں. مثال کے طور پر وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں فیصل واڈوا صاحب کا, تو فیصل واڈوا صاحب کا حوالے سے تو بات بڑی سمپل سی ہے. تو آج کی بات ہو رہی ہے, یعنی یہ پرانے الیکشن پہ اس کا اثر کوئی نہیں ہوگا, نہ اس کا اثر وہ ریٹروسپیکٹیو ڈال رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں اب جو سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں تو فیصل واڈوا صاحب تو پہلے ہی منتخب ممبر ہے, تو اس کا ان کو فرق کوئی نہیں پڑنا. یہ تو صرف بہانے ہیں تاکہ ٹرانسپیرنسی سے بچا جا سکے. اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں سمجھتا ہوں پیپلز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لا کر عوام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ٹرانسپیرنسی کی بنیاد رکھ دی ہے. اب بال جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی کورٹ میں ہے. دیکھتے ہیں جناب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کب اپروو ہے اور کب قانون کا حصہ بنتی ہے اور کب سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل جواد, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں پشاور کے بی آر ٹی منصوبے کے حوالے سے. بی آر ٹی منصوبے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اہم فیصلے کے حوالے سے بات کریں گے, جس میں عدالت نے تحقیقات نیب کو سپورٹ کرنے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا ہے, جبکہ اس معاملے کی ایف آئی اے کی تحقیقات کو بھی 1 ماہ کے لیے روک دیا ہے. اور گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی, جس میں سپریم کورٹ نے صوبائی حکومت اور پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اپیلوں پر حکم امتناع میں توسیع کر دی ہے. عدالت نے منصوبے کی لاگت میں اضافے اور غیر معیاری تعمیرات کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ الزام ہے بی آر ٹی کی لاگت تخمینے سے زیادہ آئی ہے. الزام ہے جو فلائی اوور اور انڈر پاسز بنے وہ معیاری نہیں. کئی مقامات پہ راستے کی چوڑائی کم تھی جسے توڑ کر دوبارہ بنایا گیا. ان الزامات کا جواب دینا ہوگا. سپریم کورٹ نے بی آر ٹی کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش صاحب. شامل گفتگو کرتے ہیں کامران صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. مجھے پہلے یہ بتائیے گا سر, پہلے آپ کا اس کیس پہ کمنٹ کیا ہے, جو ڈیسیجن آیا, ہاؤ ڈو یو سی؟ ہمارا خیبر پختونخوا حکومت کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ بی آر ٹی جو کہ ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اس کی 100% کمپلیشن ہو تو اس کے بعد اس کی ہم پبلک کو بھی اکاؤنٹیبل ہیں. ہماری پارٹی کا منشور ہے کہ ہم پبلک کو اکاؤنٹیبل ہیں, ہم میڈیا کو بھی, اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کی انکوائری کریں, نیوٹرل انکوائری کریں, ہم سب کے سامنے جواب دہ ہیں. لیکن ابھی یہ کووڈ کی وجہ سے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے اس کا جو 3 بڑے پارکنگ پلازاز ہیں وہ رہتے ہیں, فساد ٹو فساد امپرومنٹ رہتی ہے. اس میں جو ہمارے فیڈر روٹس ہیں تقریباً 8 میں سے 4 فیڈر روٹس ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں, 4 رہتے ہیں. تو مین کوریڈور تو اوپن ہو گیا جس میں ہم 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ پیسنجرز کو ڈیلی, جو رائڈرز ہیں ان کو ڈیلی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. لیکن باقی جو الائٹ فیسیلیٹیز ہیں اس میں ابھی ٹائم رہتا ہے. تو اگر اس وقت انکوائری ہوتی ہے تو خیبر پختونخوا حکومت کا یہ موقف ہے جس کو سپریم کورٹ نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے. یہ بتائے گا کہ بی آر ٹی منصوبے کے حوالے سے جب تحقیقات ہونی تھی تو آپ لوگ عدالت سے آپ نے رجوع کر لیا اوکے کہ ابھی ایک تحقیقات کریں گے اس حوالے سے تو ہمارا جو بی آر ٹی کی جو تکمیل ہے وہ اور ڈیلے کا شکار ہو جائے گی. تو یہ بتائیں کہ جو آپ یہ معاملہ عدالت میں لے کے گئے تھے اس سے کتنا ٹائم بڑا اس کو مکمل ہونے میں؟ یہ مختلف دیکھیں, ہمیں سیٹ بیکس آئے اس کی وجہ سے. ایک تو پہلے 3 سال جو 2013 سے 2016 تک اس وقت کی وفاقی حکومت جو نون لیگ کی تھی, انہوں نے ہمارے اس پروجیکٹ کو لٹکائے رکھا. جو کوریڈور 1 تھا اس کو نہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا, جو ہم ریلوے ٹریک کے ساتھ کر رہے تھے جو وائبل آپشن تھا. پھر اس کے بعد ہم اس آپشن کی طرف آئے. اس کی بھی جو کمپلیشن ہے وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ڈیلے ہوئی. اس کو کنٹروورشل بنایا گیا, مختلف چیزوں میں جو ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. پھر کووڈ آیا آپ کے سامنے ہے. تو یہ وجوہات کی بنا پر ہم تھوڑا سا آف ٹریک رہے. لیکن جو ہم نے کوریڈور کو اوپن کیا میں آپ کو یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جون 2021 ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کی ڈاکومنٹس کے مطابق, جو کہ فائنینسر ہے اس کا, ان کے مطابق جون 2021 کو اس کی کوریڈور کی اوپننگ تھی. ہم اس سے 1 سال پہلے تقریباً جو 13 اگست 2020 کو ہم نے اس کی اوپننگ کی, جو کہ بہت بڑی سکسیس ہے. یہ کامران صاحب آپ نے ایونٹ کا حوالہ دیا, اس میں جون 21
कॉरिडोर की ओपनिंग है, दिसंबर 21 प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है, तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन अब कब होगी? देखें, एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या हमारी जो वफाकी हुकूमत है, हम अदालती फैसलों को सर आंखों पर तस्लीम करते हैं। हम ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा जस्टिस बेस्ड सिस्टम है, जो इंसाफ पर मबनी है, उसकी कदर की जाए, उनके फ़ैसलों को एहतराम से देखा जाए। तो हम ये समझते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो एलाइड फैसिलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद मैं ये आपको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का एक ज़िम्मेदार और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि जूही कॉरिडोर के बाद जो हमारी एलाइड फैसिलिटीज़ हैं वो कंप्लीट होंगी, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ये सारी तहकीकाती इदारों को के भी सामने चीज़ें रखेंगे, और जो अवाम है। बहुत बहुत जी। कामरान बंगश बावन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे। अहम खबर शामिल करते हैं जनाब। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन की प्रमोशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान स्टील मिल की हालत का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद क्या हुआ है, हमारे नुमाइंदे हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन। जी बिल्कुल शफात, इस वक्त तो केस की समाअत में वक्फा हो चुका है, लेकिन इससे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिए हैं उसमें वफाकी वजीर निजकारी, जो वजीर जो मनसूबाबंदी हैं, और इसके अलावा वजीर सनत और पैदावार, इनको फौरी तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और इसके साथ साथ बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल के हालात हैं वो इंतजामिया की वजह से हैं, और आज पाकिस्तान स्टील मिल के ऊपर 212 अरब रुपए की जो है वो लाइबिलिटीज आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4000 जो है वो मुलाजमीन इस वक्त जब मिल बंद पड़ी है तो वो क्या कर रहे हैं, जब वो घर बैठे हुए हैं तो तनख्वाहें और मरात उनको किस बात की दी जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे भी स्टील मिल के मुलाजमीन हैं जिन्होंने 30 साल की जो तनख्वाहें और मरात ली और एक दिन भी काम नहीं किया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाज जो ब्यूरोक्रेसी है इन पर भी शदीद इज़ारे बरमी किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुल्क में कोई वफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा, तमाम सेक्रेटरी सिर्फ लेटरबाजी ही कर रहे हैं, जो कि एक क्लर्कों का करने का काम है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि समझ नहीं आता कि हुकूमत ने सेक्रेटरीज को क्यों रखा हुआ है। आज दौरान समाज जब सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जो अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक स्टील मिल का कोई आप हल जो है वो नहीं अदालत में पेश करते तो उस वक्त तक आपकी तनख्वाह भी बंद कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्रेटरीज के काम ना करने की वजह से मुल्क का सत्यानाश हो चुका है, और सेक्रेटरीज को डर है कि कहीं नैब ने ना पकड़ ले। पहले भी तो सेक्रेटरीज काम करते थे, अब पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो ये बड़े सख्त रिमार्क्स थे अदालत उज़्मा के जो सबसे सीनियर जज है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने आज जो स्टील मिल के जो वकला थे उन पर भी इजहारे नाराजगी किया, और उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल के बैरून मुल्क जाने होने पर भी इजहारे बरमी किया। उन्होंने कहा कि स्टील मिल बंद पड़ी है और जो चेयरमैन साहब हैं वो स्टील मिल के ही जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उन पर बैरून मुल्क में जो है वो सैरे कर रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया हसन अयूब आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आज जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है रावलपिंडी में। लेकिन जो आगे PSL के मैचेस हैं वो भी जनाब फुल तैयारी के साथ आने वाले हैं। शायद हाशमी हमारे साथ होंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज रावलपिंडी में हो रहा है जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। पहला टेस्ट मैच तो पाकिस्तान जीत गया था, और आज के दिन पाकिस्तान ने पहले वैसे टॉस जीत लिया है, अल्लाह करे टॉस की बरकत से पूरा मैच भी जीत गए और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। स्क्वाड वही है जनाब जो कि कराची में था, वही 17 जी 2 दिन पहले मिसबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरिस रऊफ की बड़ी तारीफ की थी, हम समझ गए नुमान ली ड्रॉप आरिस इन। लेकिन आज जब स्क्वाड का अनाउंस हुआ तो स्क्वाड में तो नुमान ली इन है। क्या हुआ ये कहानी? हम चलते हैं फौरन पिंडी में हमारे इंतब्रू और इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स करेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं। सर आप बड़े खुश रंग भी हैं, खुशगुलू भी हैं, खुश लिबास भी हैं, कुछ अपने बारे में बताइएगा, इतने हसीन क्यों हैं आप? अपना ख्याल रखते हैं शफात, खुश रखते हैं और खुश दूसरे लोगों को भी खुश रखते हैं, खुश खुद भी रहते हैं। और
मच्छर से खुश रहना सीखा, काम करे और गाए भी। अच्छा, तो अब बताइएगा मैच के हवाले से, मैच में जो पिच सामने आई है, वो पिच को देख के साउथ अफ्रीकन कैप्टन का जो एक्सप्रेशन आ रहा था, वो तो मतलब बिल्कुल उसकी रोने वाली हालत हुई थी। वाकई पिच इतनी खराब है कि वो 2 दिन भी सर्वाइव नहीं करेगा, तीसरे दिन वो घस के स्विंग शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है पिच उठा के कराची की यहाँ पिंडी में लगा दी, पिचका दी, ड्रॉप इन पिच कर दी, बिल्कुल कराची जैसी पिच है। और साउथ अफ्रीका के जो कप्तान है, टॉस हारने पे भी उनको थोड़ा गम हुआ होगा, इसलिए कि यहाँ पे जो टीम सेकंड लास्ट आखिर में बैटिंग करेगी चौथी इनिंग्स, उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और रिलक्टेंट कैप्टन भी हैं, इसलिए बेचारे वो कोई भी जवाब सही से नहीं देते। आई डोंट नो, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव टोल्ड यू, इस टाइप की बातें करते हैं। इस टेस्ट मैच के बाद वैसे भी वो कप्तानी छोड़ देंगे। और बस वैसे भी ना, थोड़ा शायद साहब हमने उनको देखा, थोड़े रुस्से से लगते हैं, नाराज से लगते हैं, समझ में नहीं आती कैसी वजूहात। और आज स्पेसिफिकली जब वो टॉस हार गए तो और भी उनके चेहरे पे वाज़ेह ये नजर भी आ रहा था। अच्छा ये बताएं, अगर आपको डिसाइड करना होता कि जो पिछला 17 रुकनी स्क्वाड था उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस या रद्दोबदल करना है रावलपिंडी वाले टेस्ट मैच के लिए, तो वैसे आप क्या चेंजेस लाते? देखिए, जब होम सीरीज होती है और आप 1-0 अप होते हैं तो आप ट्राई करते हैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ को, आप कोशिश करते हैं कि एक नए खिलाड़ी को एक और चांस दे दें, ब्रेवरी शो करते हैं। तो मेरे हिसाब से होम सीरीज है, आपको यकीनन ताबिश को खिलाना चाहिए था, हसन अली को बिठा देते। हसन अली से थोड़े से बेहतर ही बॉलर हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हसन अली थोड़ी सी बैटिंग कर लेंगे 9-10 नंबर पे आके, तो फिर ये थोड़ी सी बुजदिली टाइप है, इसलिए कि अगर आप 9-10 पे किसी बॉलर से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो रन्स बनाएगा, तो फिर आपके ऊपर के जो 6-7 बैट्समैन है वो किसी काम के नहीं है। अच्छा होता कि यहाँ पे ताबिश को खिला लेते। उसका एक क्लेम भी बन रहा है, 598 फर्स्ट क्लास विकेट से, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर है, जब आप उसको लेके चल रहे हैं तो एक टेस्ट मैच खिला देते हैं। अब पीएसएल के वाले से भी जरा बात कर लेते हैं जनाब। पीएसएल आने वाला है, क्या तैयारियां लग रही हैं? लेकिन हम पीएसएल के बारे से बात करेंगे, शाहिद साहब हमारे साथ होगा, लेकिन अभी मैं आपको लिए चलते कराची, जहां पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। ये आज पाकिस्तान के आईन में तरमीम की जा रही है। ये नवाज शरीफ ने पहले भी इसकी मुखालफत की थी कि सिर्फ पाकिस्तानी शहरी ही पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकता है। आज फिर एक कोशिश है, एक साजिश है। कल यहाँ यहूदी इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ पर भारतीय इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर कामयाब हो गए तो आपकी असेंबली के मेंबर बन जाएंगे, कामयाब ना हुए तो घर वापस चले जाएंगे। ये इमरान खान की तरमीम है। तो ये तरमीम इंशाल्लाह कभी पास नहीं होगी, ये मैं इनको बता रहा हूं। दुनिया में कोई मुल्क बता दें जो गैर मुल्कियों को, जो उनके शहरी ना हो, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता हो। हम आज आईन में ये तरमीम करना चाहते हैं। दूसरी तरमीम ये है कि सेनेट के जो इलेक्शन है वो शो ऑफ हैंड से हो, बिल्कुल हो। साथ लिख दे कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के इलेक्शन भी शो ऑफ हैंड से होंगे। पूरे पाकिस्तान को पता होगा कि किस शख्स ने किसको वोट दिया है। कर दें, हम हाजिर हैं, साथ है इसके, ताकि ये धांधली भी खत्म हो। ये जो आज मुतनाज़ा हुकूमत है, जो चोरी शुदा इलेक्शन है, ये भी खत्म हो। दुनिया में कोई मुल्क है जो इस तरह इलेक्शन करवाता है? इलेक्शन का मकसद क्या होता है? सीक्रेसी क्यों इलेक्शन में रखी जाती है? जिन लोगों ने आईन बनाया था, क्या वो गलत थे? आप जो आज कहते हैं कि गैर मुल्की शहरियों को इलेक्शन लड़ने दो, ये भी आपकी सोच है कि इलेक्शन में सीक्रेसी ना हो। इलेक्शन में सीक्रेसी क्यों होती है? ये ख्वाजा साहब तशरीफ लाए, ये बताएंगे कि दुनिया में कोई मुल्क है जो गैर मुल्की शहरियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है, जो अपने पार्लियामान में गैर मुल्कियों को बिठा सकता है, जो काबीना में बिठा सकता है। आज 1/3 काबीना गैर मुल्की शहरी पर मुश्तमिल है। 1/3 काबीना इस मुल्क के फैसले करने वाले गैर मुल्की शहरी हैं। तो फिर फैसले वही होंगे जो आज हो रहे हैं। तो हमने इस खराबी का मुकाबला करना है और आखिरी हद तक करेंगे इंशाअल्लाह। और हमने स्पीकर को बोला है, आज कौमी असेंबली नहीं चल रही, स्पीकर की जिम्मेवारी है। उस पर इमरान खान का दबाव है तो नौकरी छोड़ दे, घर चला जाए, इस ऐवान को बदनाम ना करे, जमहूरियत की हद तक ना करे, वरना वो मुल्क दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान में भी कोविड
की वायलेशन में हुकूमतें तोड़ी जाएंगी, जब यहाँ टेलीफोन रखने में हुकूमतें तोड़ी सही, जाएंगी। कराची में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो कह रहे थे, और इससे पहले हम बात कर रहे थे हमारे शाहिद हाशमी साहब से क्रिकेट के हवाले से। तो दोबारा से रुक करते रावलपिंडी का, जहाँ पर शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हाशमी साहब, शाह खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। और क्योंकि टेस्ट मैच के हवाले से बात हो चुकी है, PSL की आमद है, जरा उसके हवाले से तैयारियों को पूछ लेते हैं। जी शाह खालिद, क्या तैयारियां चल रही हैं PSL की? कोई इफ्तिताई तकरीब, कोई ऐसा कोई आर्टिस्ट ने आना जाना, कुछ है आइडिया? देखिए, आज अहम इजलास है NCOC और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि PSL में तमाशाइयों को इजाज़त मिलती है या नहीं। असद उमर ने इससे पहले वो बता चुके हैं कि 30 से लेकर 40% जो तमाशाई है वो PSL मैचेस देखने जो है वो आएंगे, और फ्लैप मैचेस के लिए PCB ने उनसे बात भी की है कि कम से कम 50% जो तमाशाई है उनको आने की इजाज़त जो है वो दी जाए। इस पर आज अहम फैसला जो है वो किया जाएगा। PSL के तमाम मैचेस कराची और लाहौर में होने हैं, लेकिन जो इजलास है वो आज इस्लामाबाद में है, और उसमें यही फैसला किया जाएगा कि कितने फीसद शायकीन जो है वो ग्राउंड के अंदर जा सकते हैं या नहीं। ज़राई ये बताते हैं कि 30 से 40% तमाशाइयों को इजाज़त जो है ये मिल जाएगी। 30 से 40% तमाशाइयों को इंशाल्लाह इजाज़त मिल जाएगी। बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई है शाह खालिद, आबाद रहिए, थैंक यू वेरी मच। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे आपको बताते चलें कि 2 किस्म के बच्चे होते हैं हर घर में। एक वो बच्चा होता है कि जो घर में बीबा होता है, बिल्कुल ठीक ठाक फिर रहा होता है, आपको कभी शक भी नहीं जाता कि ये बच्चा कभी कोई शरारत कर सकता है। एक दूसरा किस्म का बच्चा होता है, जैसे ही, और उस बच्चे की कुछ सृष्ट ऐसी होती है कि जैसे ही आपको बर्तन टूटने की आवाज़ आती है, आपको पता होता है कि बर्तन टूटे, आपको पूछने की जरूरत नहीं किसने तोड़ा, आप उसी वक्त कहते हैं ओ तुम्हारा टूट 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 टूट, और वो बच्चा आके शर्मिंदा होकर कहता है जी सॉरी जी गलती हो गई। अब हमारा भी कुछ ऐसे ही सीन हो गया है, क्योंकि जैसे ही कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान की जानिब से टूटता है हमें फौरन पता चल जाता है कि राशिद नसीम ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल शफात। और पिछले साल तो राशिद नसीम ने वैसे ऑलरेडी अगर देखा जाए तो तकरीबन 64 रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, और इस साल भी जनाब इन्होंने अब इंडिया का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब इंडिया वाले इनको देखते वो पर्दा कर लेते हो, कहते भाई हम कोई रिकॉर्ड बनाए, राशिद आके फौरन वो रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो ब्रूस ली ऑफ पाकिस्तान राशिद नसीम हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राशिद, बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपको जनाब मुबारकबाद ना देके थकेंगे ना मुझे लगता है रिकॉर्ड तोड़ते हुए थके। अभी कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा जनाब आपने? ये 10 kg वेट के साथ था। इंडिया का रिकॉर्ड था 5 kg वेट ईच लेग्स पर था, यानी टोटल 10 kg था। 138 किक्स जो है वो टारगेट पर हिट करनी थी, और ये इंडिया के नारायण थे, उनके पास ये रिकॉर्ड था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है, और 159 जो है वो मैंने किक्स की हैं। और इससे पहले ही मैंने एक किक का और रिकॉर्ड था, जिसमें मैंने इंडिया के ही जयंत रेड्डी थे जिन्होंने 10 kg वेट के साथ 1155 किक्स की थी 1 आवर के अंदर। तो उनका भी मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था 1390 किक्स कर। ओए होए होए, इतनी शदीद किक्स, 5 kg वजन बांध के बंदे से टांग नहीं उठती अपनी। आपने मतलब 1100 किक्स मारे, अमेजिंग जॉब, बहुत ज़बरदस्त। को आगे क्या प्लान है, मजीद कितने रिकॉर्ड तोड़ने? बस प्लान ये है कि 2020 जो गुजरा है उसके अंदर मैंने 20 रिकॉर्ड्स जो है वो कायम किए थे। इस साल कोशिश करेंगे कि अपनी सेंचुरी की तरफ जो है वो अपनी कंप्लीट करें, और इस पर मेहनत कर रहे हैं। और अभी चाइना के 2 रिकॉर्ड मैंने लाइनअप किए हुए हैं। ब्रूस ली का एक बड़ा मशहूर वेपन है नंचक्कू, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं, और दूसरे नंबर पर जो है वो चाइना है इस वक्त, जिसके बाद सबसे ज्यादा मतलब जिनकी गेम थी वो पीछे रह गए, हमारे राशिद जो है वो आगे निकल उसको आगे नहीं निकलने देना अपने आप से। तो वो भी बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है, और मैंने अभी इंशाल्लाह ताला उसके 2 रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, तो फिर फासला काफी ज्यादा हो जाएगा। नंचक से क्या करेंगे? नंचक्कू के साथ जो है वो एक तो बॉटल होती हैं, और उसके बीच में प्लेइंग कार्ड होता है, तो उसको नंचक्कू के साथ रिमूव करना है। 14 का रिकॉर्ड है चाइना का। और क्राउन कैप बॉटल्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, उसको नंचक्कू के साथ ही खोलना है। तो उसने 20 सेकंड्स के अंदर जो है वो बॉटल्स ओपन की हैं क्राउन कैप। और इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा है कि इन दोनों रिकॉर्ड्स को जो है वो जल्द से जल्द तोड़ा जाए। राशिद एक बात तो बताएं, मतलब पिछले साल माशाल्लाह से आपने 20 रिकॉर्ड, 2020 से तो आपने 20 रिकॉर्ड तोड़े। इस बार हमारी कोशिश है कि आप 20 नहीं आप 40 रिकॉर्ड तोड़ें, अगर आप 21 प्लान नहीं करते। लेकिन कितने अरसे बाद दूसरा रिकॉर्ड तोड़ते? वैसे ये तो बताएं आप, महीने में 2 रिकॉर्ड तो आप आराम से तोड़ लेते होंगे। ये तकरीबन जो है मैंने 2013 में पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया था, तो उसके बाद हर साल की जो एवरेज है वो पहले वाले साल से ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी मैं अटेम्प्ट करता हूं तो मैं 2 या 3 रिकॉर्ड एक साथ अटेम्प्ट करता हूं, और तकरीबन 2 से 3 महीने, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने
का जो है वो तकरीबन गैप आता है, फिर 2 से 3 रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद फिर उनकी मेहनत करता हूँ, फिर उनको तोड़ता हूँ, फिर बस इस तरीके से चलता रहता है। जितने आप माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, वो तो आप बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करते हैं, वरना सुनने में तो यही लगता है कि यार आपके लिए क्या काम है, सुबह उठे चले यार आज कुछ नहीं कर रहे, रिकॉर्ड दुकान पे नहीं जा रहे, आज हम रिकॉर्ड तोड़ लेंगे। देखें जी, लोगों को जो है जो हमारी पीछे मेहनत होती है या पीछे स्ट्रगल होती है वो लोगों को नहीं पता। लोगों को पता है यार शायद ये इतने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है तो ये बहुत आसानी के साथ है। मतलब कुछ 6 महीने हो गए रोटी नहीं खाई है, रोटी के साथ परहेज है, उबली हुई चीजें खा रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रोटीन और डाइट का इतना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, और तकरीबन रोजाना 4 बजे जो है मैं दिन में प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ और तकरीबन रात के 11 बज जाते हैं। चाहे शादी हो, चाहे घर में कोई मसला हो या किसी भी कोई प्रोग्राम हो, प्रैक्टिस सबसे पहले। समाजी बैलेंस है वो तो हो जाता है, लेकिन मसल्स आपके तो अपने हैं ना, वो तो मसल अब आप 5 kg अगर आपने 1 घंटे में 1300 किक्स मारी तो डेफिनेटली आपने 500 से स्टार्ट किया होगा और 5-6 दिन आप बैठे रहे होंगे कि यार क्रैम्प पड़ गए, कलियां पड़ गई सारी। हाउ डू यू मैनेज? बस देखिए जी, ये प्रैक्टिस मैन जो है वो परफेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा, बस बात ये होती है कि आपकी जो डेडिकेशन है ना किसी भी काम के अंदर, अगर वो है अच्छी है और आपका फोकस बहुत अच्छा है, अगर आपके जहन में कहीं पर ये माइंड में ये बात आ जाती है कि यार आप ये नहीं कर सकते, तो फिर आप वो चीज़ कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो बस मेरा फोकस यही होता है कि जब मैं मुश्किल से मुश्किल रिकॉर्ड भी इसलिए बना लेता हूँ कि मैं एक तो प्रैक्टिस बहुत रेगुलरली करता हूँ और तमाम चीजों में फोकियत देता हूं। अपने बच्चों को भी माशाल्लाह से आप और फिर मेरी बेटी है माशाल्लाह से, अब तो वो भी पापा का हौसला बढ़ाती रहती है, तो वो भी मुझे पीछे से बैक करती है, शाबाश पापा, शाबाश पापा। टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हो गए? टिकटॉक पे 5 लाख फॉलोअर्स हैं। ये देखें ना, अच्छा टिकटॉकर, ये अच्छे वाला टिकटॉकर। मैं सिर्फ मार्शल आर्ट की वीडियोस ही डालता हूं अपने टिकटॉक पे। एक तो आपने टिकटॉक पे हमारी वीडियो भी डाली थी, तो वो हमारे साथ ही बनाई थी, हम भी उस बहाने टिकटॉक पे आ गए। थैंक यू सो मच जी। राशिद साहब हमारे साथ तो मौजूद थे और माशाल्लाह से क्या रफ्तारन की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की, और हमारी दुआ है कि भी आगे ऐसे ही नए रिकॉर्ड्स जो हैं वो कायम करते रहें। छोटी सी ब्रेक हम ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब हम जरा बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। वैसे तो शफात एक्सरसाइज और सुबह की वॉक, चाहे वो सुबह की हो शाम के लिए हो, बड़ी मुफीद होती है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे योगा की, क्योंकि सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, दिमागी हेल्थ भी तो काफी जरूरी होती है। बिल्कुल जी, मुझे कुछ नहीं पता योगा के बारे में, क्योंकि मदिया करती मैंने कभी की। आपने योगा नहीं कभी किया? मैं वो नथने एक बंद होते हैं ना, वो सिर्फ वो मुद्राज और डिफरेंट उसके। हाँ, वो बस इतनी आती है, इतना ही पता, खुद नहीं करते। मैं ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल जो है ना, मैं चिट्टा हूँ इस मामले में। चलो कोई बात नहीं, हम भी कौन सी योगा के एक्सपर्ट है, तो योगा के एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ कहकशां नदीम आज स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कहकशां, वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे अभी हमें और शफात बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज के थ्रू ही अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं या अपने किसी भी पुरानी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। मेंटली तौर पर भी हमें एक चीज़ जो सबसे सुकून देती है, दैट इज़ योगा। कैसे? ये रेगुलर प्रैक्टिस है, यू प्रैक्टिस रेगुलरली योगा। आई मीन हाउ डज इट वर्क? कैसे काम कैसे करता है? और हम आपके करीब करीब आ जाते हैं, हम जरा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख लेते हैं। ये काम ऐसे करते हैं कि आप, बिकॉज व्हेन वी परफॉर्म योगा तो हमारी इन्वॉल्वमेंट मेंटली बॉडी के ऊपर आ जाती है, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो जब ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं तो वी आर फोकस ऑन अ ब्रेथ, सो और सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं फॉर अ वाइल। सो इस तरह माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, योग मीन्स होता है कोऑर्डिनेशन, यूनिफिकेशन ऑफ द माइंड बॉडी एंड सोल। सो आप सोल से कनेक्ट होते हैं बाय योर ब्रेथ एंड माइंड। ओके, सो क्या ऐसा कर सकते हैं टू बिगिन? हाँ, तो मैं यूजुअली मैं योगा नहीं सिखाती लोगों को। अच्छा। जो आसान, योगा से ज्यादा आसान चीजें वो मैं सिखाती हूँ, ताकि योगा से वो करें जिनको बहुत शौक है। हमने आपकी वीडियोस देखी है, वो जो आप दरख्त पे बॉडी वेट के साथ जो आप कर रही थे वो बिल्कुल आसान नहीं, वो एरियल योगा है। वो एरियल योगा करती है जनाब, वो आप लमक के दरख्त पे, पता नहीं आप हवा में लमक के योगा कर रहे होते हैं। वो उसके लिए थोड़ी एक्सपर्टीज, टाइम चाहिए होता है। बेसिकली यहाँ मैं बात करना चाह रही हूँ ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने की। यूजुअली हम योगा टेक्निक्स यूज करते हैं, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, वो हम करते हैं, लेकिन वो सिखाना लोगों को इतना आसान नहीं है। सो बिफोर यू गेट इनटू प्राणायामा, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस समथिंग व्हिच इज हेल्प्स टू क्लेंज योर ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, जब आपके ऑर्गन्स क्लीन होंगे तो फिर आप अच्छी सांसें ले सकेंगे और बॉडी को फैसिलिटेट कर सकेंगे। वी जनरली टॉक अबाउट हार्ट हेल्थ अलॉट। ठीक है, हार्ट हेल्थ कहाँ से आती है? लंग्स से आती है। सारी हेल्थ आपकी लंग्स से आ रही होती है। तो अगर आपके लंग्स, मैं सांस यानी सांस या सांस, ब्रेथ, अच्छी सांस, अच्छा दिल नहीं, अच्छा ये अच्छी सांस हो गई, ठीक है।
अच्छी सांस से होंगी तो फिर सांस भी शायद अच्छी हो जाएंगी. तो आपकी ब्रेथ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. 23,000 टाइम टू 26,000 टाइम वी टेकिंग ब्रेथ एवरी डे, इनहेल एंड एक्सहेल. तो उसमें से अगर आप 1,000 ब्रेथ भी अपनी सही कर लें तो आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी. लाइक हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा. जो आपने हाथ में पैकेट पकड़ा है इसमें क्या है? हाँ, इसमें है, मैं कोई बलून बेचने वाला इंसान नहीं हूँ. बड़ी अच्छी तरीके से लंग्स की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है. इस मौके पे मुनीर नियाज़ी साहब का शेर याद आ गया, सावा दी में रेडी लाई लोकी कहते गुब्बारे. और यहाँ कोई बर्थडे पार्टी नहीं हो रही. दिस इज द बेसिक, द इजीएस्ट वे टू enhance the quality of your breathing. First is you can just simply blow the air in the balloon. Practicing this, what helps in your lungs is the more you exhale, the next inhale will be better. So this is how pressure से सांस. ये सांस के हवाले से हम अपने शोज में पहले भी बात कर चुके हैं. मुझे बताइएगा खास तौर पे आजकल के दिनों में सर्दियों में अब जाते से बहुत ज्यादा मसल्स क्रैम्प्स होते हैं और लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा हो जिससे सारी बॉडी जो है ना वो रिलैक्स हो जाए, एनर्जाइज हो जाए. ब्रीदिंग, सिंपल ब्रीदिंग. एंड पहले यू नीड टू आपको अपने लंग्स की फुल कैपेसिटी को यूज करना. अच्छा, ये मतलब हमारा मसला ये कि लोग बेचारे हमारे हम जब तक उनको करके नहीं दिखाते वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. जैसे बलून आपको नहीं पता कैसे बैलून नहीं, वो तो हमें पता ही है, बट ऑफ कोर्स हम जब बैलून फुलाते हैं तो यू यूज द एक्चुअल मसल्स, actual lungs to inflate the balloon. ठीक है. So आप balloons, this is the only way. हमारी breathing में भी techniques होती हैं, भास्त्रिका होती है, कोई oxygenation होती है, but उससे आपको idea नहीं होता until unless आप कोई tool नहीं use करते. तो tool से पहला step है for beginners कि वो जितनी दफा बलून फुलाएंगे उतनी दफा आप अपनी ज्यादा कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे और यस एंड फ्रेश एयर में होना ज्यादा बेहतर है आजकल के हिसाब से. सेकंड थिंग, नॉस्ट्रल्स, मोर देन हाफ पीपल हैव नॉस्ट्रल प्रॉब्लम, दे ब्लॉक. सो उसको क्लीन करने की दो बेहतरीन तरीके हैं. एक तो पानी है, दूसरा है बलून. यू इन्फ्लेट द बलून विद योर नॉस्ट्रल्स. सो आपको फील आएगी, जो हम भास्त्रिका दूसरी ब्रीदिंग करते हैं योगा में, लोगों को समझ नहीं आ रही होती, हमने नाक के थ्रू बलून को इन्फ्लेट करना है. ओके. तो आपका फोर्स लगेगा, तो अब फोर्स से आपकी सारी जो ब्लॉकेज है वो क्लीन हो जाएगी. आपको ट्राई करें, एक वीक भी करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, सेम डे भी मिलेंगे. यूजिंग अ बेसिक बलून आप जो है अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं. आपको लिए चलते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब की तरफ, जो कि इस वक्त मीडिया से बातचीत करें. इस साल के आखिर तक इसका एक लंबा प्रोसेस होता है. इन 5-6 महीनों में ये प्रोसेस मुकम्मल करेंगे, चाहे लाहौर जाकर मुझे बैठना भी पड़ा. इसी साल में ये यूनिवर्सिटी बनेगी और मुझे उम्मीद है. एक वक्त था कि हम पाकिस्तान में 27वें नंबर पे थे. आज वो वक्त है कि हम फीमेल एजुकेशन में पाकिस्तान में पहले नंबर पर हैं. और हमने ऐसे नक्शे इन तालीमी इदारों के बनाए जिसका क्या फायदा हुआ कि स्लम एरिया में बनाए. अंग्रेज यहां से मजदूर हासिल किया करता था जहां ढोक का लफ्ज था. ढोक खब्बा, ढोक रत्ता, ढोक हसू, ढोक मटकाल, ये सारी ढोकें अंग्रेज अपने मैकेनिक, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन इसके लिए लेता था. रावलपिंडी में जिस जगह भी ढोक का नाम था, हमने वहां बेहतरीन स्कूल. और शेख रशीद अहमद साहब रावलपिंडी में गुफ्तगू कर रहे थे. यहाँ वक्त हो गया आपसे इजाजत चाहने का. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. शादरिया बादरी कोरोना से दूर रही. अल्लाह हाफिज. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.